because no plan was given, because no plan was given to me. What means, what was the motive? I prepared two teachers. Two means one of them had to deliver in English and one in Punjabi. And both of them they work. Both of them means they worked for all. सर आप सॉरी अनम्यूट कीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया था। हाँ जी। So means these teachers, what they did, they prepared speech for 2 days, and our show was to start at 4 o'clock. So at 2 o'clock, when I reached there, both the teachers were crying. I asked for the reason. They said, "Sir, we are very much sure that nobody will come. अच्छा। But I have my own magic." So what I did, I call all the students of that village, particular village. I called them in hall. I said that you have 365 days for teachers, 1 day for principal. I want to see your parents. हाँ। But all the teachers, both the teachers, they said that nobody will come. Then I told them one very interesting story, which we all need to know. We should not see that how many participants will be there. What happened about 60 years back, the owners of MB Business, what they did, they made some products. My request is that keep a pen in your hand. You can note down these cases. They will help you a lot. Yeah. So what they did means both of them, they prepared one speech of 2 hours, a show of 2 hours, and they spent all their money on radio advertisement, pamphlets, newspaper, whatsoever. And they arranged 800 seats for the show. Time was at 8 o'clock at night. It was 8 to 10. When it was 8 o'clock, there was single man in the hall. Single man. Think the morale of the speakers. What to do? Yeah. You know what they did? They went inside and they decided that we will deliver for speech for 2 hours as if the hall is full. If this man joins the business, we will go with the business. And when all three of them died, they had their own aeroplanes. Wow. Okay. So I told my teachers that don't worry about it. So at 1 o'clock, when Rana Sahab, he had called the Sarpanch. So out of 21 villages, hardly 3 or 4 Sarpanch came. And he was full of anger, very annoyed. And my teacher said, "Sir, means their Sarpanch did not come. So what about you?" I said, "You don't worry." I said, "You don't worry, we will see." When at 4 o'clock, Lord Rana came, the house was full, and we had to open the doors. Parents were standing outside. So both the teachers, they were excited. They started speaking. When they started speaking, after 5 minutes, Lord Rana, he went on the stage. He snatched the mic. He said, "These people have come to see me, not to listen to your speech. Give me the mic." Oh. The Sarpanch of the village. The Sarpanch of the village, he stood up and he gave one statement. He said, "Lord Rana, we are not here to see you. We are here to see the principal who has done magic on our kids." And Lord Rana, he was in sweat. He called me on the stage. He called me on the stage and there was big clap. Wow. Okay. Then they requested me to speak. And Lord Rana has a palace in Sanghol. So at night, he invited me for dinner in his palace. Wow, 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 wow. I magic worked. is there, sir, undoubtedly. मैं आपको बताता हूँ, कई बातें बताऊंगा आपको, फिल्मी लगेंगी। वहां पर क्या हुआ, वहां एक क्लर्क था, वो ना लॉर्ड राणा का रियल भतीजा था। वो फीस पेरेंट्स से लेकर के, वहां पर 2000 बच्चा था, सारी फीस अपने अकाउंट में डाल देता था। अच्छा। मुझे किसी पेरेंट्स ने कंप्लेंट की कि सर इनके रिकॉर्ड में जीरो मतलब है, आप चेक करो। दिसंबर के महीने में मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि ये गड़बड़ कर रहा है। आई फाइल्ड अ कंप्लेंट टू डायरेक्टर ऑफ दैट ग्रुप। और वो सब वहां पे 5-5, 6-6, 10-10 साल से काम कर रहे थे, मुझे काम करते 2 महीना हुआ था, वो सब मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने एक कमेटी बनाई, इंक्वायरी की और लिख दिया कुछ नहीं हुआ। एंड दे ऑल स्टार्टेड मींस हिटिंग मी लाइक एनीथिंग। आई नो।
So in the month of January, I resigned from the job. So लॉर्ड राणा 2 महीने के लिए वहां आते रहे। वो जब जनवरी के महीने में वहां पर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मिस्टर देवगन आपने क्यों रिजाइन किया है। मैंने उनको पूरी कहानी बताई। तो वो कहते कि बोले कितना के गबन होगा, 2 लाख 4 लाख, तू भूल जा। मैंने कहा सर आपके यहाँ 75 लाख तक का गबन हो सकता है। He said, "Are you a CA?" I said, "I am not a CA. I am principal. I know all these things." वो गुस्से में चले गए। अगले दिन जब उन्होंने CA बुलाया तो इट वाज वर्थ 1 करोड़ रुपीज। Oh और my. उसके आगे की कहानी बताता हूँ। जब मैंने अपना रिजाइन उनके सामने रखा, बिलीव मी, उन्होंने ये, ही वाज ऑफरिंग मी 65, आई वाज कमिंग टू दशमेश ऑन 60। सी, देन ही सेड कि मिस्टर देवगन तुम जिस स्कूल में जा रहे हो तुम्हें कितना पैसा मिल रहा है। तो मैंने कहा कि सर पैसे की तो बात ही नहीं है। तो बोलते कि मैं ऑन द स्पॉट तुम्हारी 5000 सैलरी बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं। कहते बोल कितनी चाहिए। मैंने कहा सर आप अभी भी मुझे नहीं समझ पाए। बिलीव मी, उन्होंने मेरे सामने ब्लैंक चेक रखा, बोलते अपनी सैलरी भर। पीपल फील इट लाइक अ स्टोरी, फिल्मी स्टोरी, इट्स अ रियलिटी। ही सेड कि मैं जहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप कराने के लिए इंग्लैंड ले जाता हूँ, उनके जो बच्चे हैं ना उनके साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं कुछ डिस्प्यूट के कारण। कहते तू सोच मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। तो मैंने कहा पहुंचाने वाला रब है सर, आप नहीं। एंड आई मूव टू। Yes, very good, very, very nice. तो So ना welcome you, sir. And I really acknowledge all the participants who are eagerly waiting for this wonderful session. Sadhana ma'am, Priyaveda ma'am, Raman, Rajkumari, Suman, Alka, Satinder, Rajinder, Ritu, Mukesh, Babita, Ramandeep, Darshana, Sukhjeet, Kausar, Harsimranjeet, Bhupinder, Baichans, Satinder. I really welcome everybody on this beautiful platform, and I really eagerly wait. Vrat sir, welcome. We are eagerly waiting to listen to Dashmesh sir. दशमेश सर नहीं, सर अपूर्व सर। अब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से या दशमेश निकलता है क्योंकि दशमेश पब्लिक स्कूल है, तो मेरे लिए अपूर्व ही दशमेश है। तो सॉरी सर, बट दैट इज अगेन अ फेदर इन योर कैप बिकॉज you have been working in this school from last 9 years, and amazingly, because we visited his school, undoubtedly हर दीवार, हर फोटो, हर क्लासरूम, हर इंसान, हर टीचर, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो चाहे कोई भी हो, बोल रहा था उनकी उनकी लीडरशिप की तारीफ, उनकी सिस्टम की तारीफ। इट वाज ऑल सो सिस्टमैटिक। आई रियली 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 एक्नॉलेज यू सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू दैट प्लेटफॉर्म, एंड वी लव्ड बीइंग देयर। हाँ, हर पल कम लग रहा था, बस ये बात पक्की थी। लग रहा था 2-4 दिन और रुक जाए, लालच बढ़ता ही गया था वहां पे। Thank you, Priveda ma'am, for organizing such beautiful platform for us. हाँ, हमारे पास थोड़ा कम टाइम था, हम ज्यादा डिलीवर जितना कर पाए नहीं कर पाए, बट वी हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, बट वो नहीं हो पाया, बट वी डिड आवर बेस्ट दैट वे। सो थैंक यू सो मच सर, एंड आई वोंट टेक लॉन्गर टाइम बिकॉज सर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन बनाया है, और सर ने अचानक से बोला कि मैम मुझे ये करना है। बिकॉज जो मैं सर को आज तक समझी हूँ, अभी भी जो सेक्स स्टोरी सुना रहे थे सर का एक ही मकसद है, वी नीड टू क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशनल सोसाइटी, whether we talk about teachers, whether we talk about students, whether we talk about anybody. And the kind of love she has got for education, and the kind of love he has got to contribute to the society is unbeatable. So thank you so much, sir, for taking this initiative. And I really appreciate everybody present over here on short notice. They are joining us on short notice. They are coming over here and boosting our morale. It's really, really amazing. Rohit sir, Dr. Pragya, Anju, Radhika, Arushi. Welcome everybody. Now I give the platform to Apurv sir, because everybody is eagerly waiting for his presentation. And please sir, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बारे में, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो आप अपनी इंट्रोडक्शन दे पाएंगे शायद मैं वो इतनी अच्छे से नहीं दे पाई। वेलकम सर, प्लीज ओवर टू यू।
means again I will just say कि an ordinary man with commitment जिंदगी का बहुत बुरा वक्त देखा है, और वही एक कारण रहा कि मेरी कोशिश होती है कि कोई भी इंसान जो मुश्किल में है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरा शुरू से ये रहा है, मेरे पास 6,500 बच्चे हैं, उन सबके पास मेरा नंबर है, और मेरा एक ही स्लोगन है, जब दुनिया का हर इंसान, आपके माँ बाप भी आपके खिलाफ हो, तो याद रखना आपके प्रिंसिपल आपके साथ। Wow. एंड सेम थिंग आई टेल माई टीचर्स आल्सो कि घर से मस्जिद है थोड़ी दूर से ही, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी इंसान के चेहरे पर एक चमक लाई जाए, रौनक लाई जाए, किसी के जीने की वजह बना जाए, किसी की मुस्कान की वजह बना जाए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। एंड फॉर दैट रीजन ओनली आई थॉट ऑफ दिस वर्कशॉप कि शायद जो आज का ये शो है, इसके बाद किसी की जिंदगी में एक बदलाव आए। बीच में मैं आप लोगों से कुछ बहुत शानदार कोट शेयर करूंगा, शेर होंगे जिसमें कविताएं होंगी, आप में से कोई भी चाहेगा तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। काफी कंटेंट इसमें लिखा हुआ मिलेगा, जो हिंदी वाला पोर्शन है वो लिखा नहीं मिलेगा, वो आपको सुनने को मिलेगा। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप वहां से भी सुन सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास होगा, अदरवाइज मैं फिर बोल दे रहा हूँ, 8837697092। आप सभी से, मैं जैसे नाम सुन रहा था, कई लोग हैं जो आप में से मुझे नहीं जानते, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, और जब कभी भी आपको लगे आपको मेरी जरूरत है, यू कैन जस्ट कॉल मी। आपकी एक कॉल पे, एंड डोंट सी टाइम कि टाइम क्या हो रहा है, सुबह है, शाम है, रात है, नहीं, मेरे लिए आपकी स्माइल बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह से अगर मैं आपके काम आ सकूं, तो मैं वहां पर हूं जिस वक्त आपको मेरी जरूरत है। So it is my brief introduction. I started my career from army school. My father was in army, and means for 6 years I worked in army school Faizabad. Then we shifted to Punjab. At the age of 32, I joined DAV Public School as Mukassir, and there I worked for 3 years. Then I joined AS Modern Khanna, one of the most prominent schools of Punjab. I worked there for 7 years, more than 7 years. Then for the with Dashmesh, I have completed more than 9 years. और आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, बहुत कुछ लिखा है, और अच्छा लगता है जब कोई मेरी लिखी हुई लाइन मेरे सामने सुनाता है। जैसे आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में ये लाइनें हैं कि आई वांट टू लीव माय फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, व्हेन पीपल विल स्पीक ऑफ विनर द फर्स्ट नेम शुड बी माइन। मैं समय की रेत पर छोड़ना चाहता हूँ अपने पाँव के निशान, जब भी जीतने वालों की बात हो सबसे पहले आए मेरा। किसने बहुत अच्छा कहा है, बरसों जलाए हैं चिराग मुशक्कत के, तब जाके चेहरे पे ये नूर आया है। ये जो जो मीन्स, अगेन आई से, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन बट आई एम वेरी कमिटेड फॉर माई ड्रीम्स। आई कैन डू एनीथिंग, पीपल से डोंट मेक इट प्रेस्टीज इशू, आई ऑलवेज से मेक इट प्रेस्टीज इशू। मैं हूं तो कैसे नहीं होगा। हर इंसान को ये बात अपने अंदर लेके चलनी चाहिए कि अगर हम ठान लें या मान लें तो कुछ भी किया जा सकता। तो नेक्स्ट वन, नेवर गिव अप। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता की कहानी दो बार लिखी जाती है, एक बार दिमाग में अपने हौसलों के साथ, और दूसरी बात रियलिटी में। आप सबने ये डायलॉग सुना होगा, ये इट वाज फ्रॉम आमिर खान मूवी, कुश्ती वाली जो पिक्चर आई थी उनकी, उसमें से ये डायलॉग था, जब वो अपनी बेटी को कहता है, उसकी इंसान, एक आदमी कहता है तेरी बेटी ने गलत बंदे को चुन लिया, उसने सबसे जो स्ट्रांग बंदा है उसको चैलेंज किया है। तो वो कहता है कि हर लड़ाई जो है वो दो बार लड़ी जाती है, एक बार दिमाग में और एक बार मैदान में। अगर आपने दिमाग की लड़ाई जीत ली तो मैदान की लड़ाई आधे से ज्यादा आप जीत चुके हैं, और हमें ये मान करके चलना चाहिए। मैं मानता हूं ये परम सत्य है। नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले ये देख लें कि व्हाई दिस वर्कशॉप, अगेन बिकॉज योर सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आगे चलने से पहले मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। यहाँ पर एक बार समुद्र में साइक्लोन आया और किनारे पर ढेर सारी मछलियां बिखरी हुई थी। तो वहां पर एक मेरे जैसा इंसान, वो एक मछली उठाए पानी में फेंके, एक मछली उठाए पानी में फेंके, एक मछली उठाए पानी में फेंके। तो वहां पर एक बड़ा विद्वान शख्स जा रहा था, उसने कहा क्या तुम इन सारी मछलियों को बचा सकते हो जो तुम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम।
मूर्ख हो। उस आदमी ने कहा मुझे पता है, मैं सारी मछलियां नहीं बचा सकता। उसने नीचे से एक मछली उठाई, पानी में फेंकी, कहता कम से कम मैं इसको तो बचा सकता हूँ। और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए। माना हम जग नहीं बदल सकते, पर जितना हमारे हाथ में है उसके उतने एफर्ट्स हमारे पूरे 100% एफर्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, ये बैम्बू स्टोरी बड़ी फेमस है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। जापान में एक बैम्बू प्लांट होता है, और जब आप इसको लगाते हैं तो 2 साल तक ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती है। पर जो लगाने वाला इंसान है वो उसी लगन से उसको लगा रहता है, क्योंकि 2 साल बाद ये एक दिन में 120 सेंटीमीटर बढ़ता है। आप अंदाजा लगा लीजिए इसकी ग्रोथ का। वैसे ही जब हम जिंदगी में स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, जब हमारे टफ टाइम होते हैं, तो हम कई बार मान करके चलते हैं कि हमारा टफ पीरियड बहुत लंबा है, पर हम ये नहीं समझते जो ये टफ टाइम है ये हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहा है। वो मेरी बड़ी फेमस लाइन है, मेरी लिखी हुई लाइनें हैं कि आई एम लाइक अ टेनिस बॉल, आई डोंट माइंड इफ आई फॉल, दैट इज आल्सो नाइस, बिकॉज व्हेन आई बाउंस बैक ट्वाइस और थ्राइस। गिरने से मत घबराओ, जब छलांग मारो तो लोग आपकी मिसाल दें। वाह, अगर देखना है तो मिसेस मोनिका को देखिए, जिन्होंने छलांग मारी ऐसी कि लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल बनो लोगों के लिए, एंड इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट वन। हाँ, एक रिसर्च जो हमने बोला कि नेवर गिव अप, क्यों नहीं हिम्मत हारनी चाहिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और कामयाबी का एक बहुत आसान तरीका भी है, बहुत आसान तरीका है। वो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि रिसर्च में ये पता चला है कि 97% लोग इस धरती के ऊपर कोई गोल नहीं बनाते हैं अपनी जिंदगी में कभी भी, उनको पता ही नहीं कि गोल क्या होता है। और उन 97 के बाद जो 7% बचते हैं लोग, उनमें से केवल 3% लोग अपने गोल्स लिखते हैं। और जो वो 3% लोग गोल लिखते हैं वो उसको अटेन करते हैं। क्योंकि जो कामयाब लोग हैं ना, वो इस चीज, उनके ऊपर इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि हालात उनके साथ क्या करते हैं। उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो हालात के साथ अपनी कमिटमेंट कितनी अच्छी शो करते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है, ए लाइफ विदाउट गोल्स इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। अगर आपकी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है तो ये मान करके चलिए आप जी ही नहीं रहे, आपके अंदर आत्मा नहीं। Let's discuss about ABC of life. In next few slides, we will discuss some alphabets A, B, C, D. ऐसा बोलते हैं कि if plan A doesn't work, look for something better because alphabets have 26 more letters. 26 शब्द और हैं, उनको ढूंढो। जिंदगी में जब भी कभी परमात्मा अगर एक खिड़की बंद करता है तो दूसरी खिड़की खोलता है, और अगर वो खिड़की नहीं खोल रहा है तो खिड़की बनाओ। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि लोग कहते हैं डोंट मेक कैसल्स इन एयर, तो somebody said make castles in air, if you have made don't worry, give foundation to it। अपने सपनों पे कभी भी किसी भी, इफ वन कैन डू यू कैन टू, कभी भी किसी के कहने पर हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका संघर्ष केवल आप ही जानते हैं, कोई और नहीं। यस, ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड मोस्ट, it's the greatest discovery of this century, because if you have positive attitude you can change your life. Whenever whatsoever mind can think and believe, it can do. Vision is the power to see the things which other people can't do. Attitude has such strong power, so always keep positive attitude. देखिए, जब भी हम लीडरशिप की बात करते हैं, जिंदगी की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पूरी डिक्शनरी में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में केवल एक ही शब्द ऐसा है जिसको अगर हम अल्फाबेटिकल प्लेसेस में रख करके जोड़ें तो 100 सम बनता है, एंड इट इज एटीट्यूड। यू कैन चेक इट योर सेल्फ, दैट इज द रीजन। इसके अगली स्लाइड में बड़ी शानदार लाइन लिखी है, कामयाब और नाकामयाब लोगों में बहुत छोटा सा फर्क होता है। कामयाब और नाकामयाब लोगों में बहुत छोटा सा फर्क होता है, और वो फर्क होता है एटीट्यूड का। और कैसी एटीट्यूड का? पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलते हैं वो समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और जो नेगेटिव लेके चलते हैं वो समस्याओं का में प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। उनको हर समस्या में एक प्रॉब्लम दिखती है। इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। एक आदमी को एक ऐसा कुत्ता मिल गया जो पानी के ऊपर दौड़ सकता था। वो अपने दोस्त को लेकर के समुद्र के किनारे गया, और उसने जानबूझ के मछली फेंकता था, उसका कुत्ता दौड़ के पानी के ऊपर चल के ले आता था मछली को उठा करके। वो पूरा दिन वेट करता रहा, उसके दोस्त ने तारीफ नहीं की, उससे रहा नहीं गया। जब वापस आने लगे तो उसने बोला तुमने मेरे कुत्ते के बारे में कुछ नोट नहीं किया? कहता हाँ यार, तेरे कुत्ते को तैरना नहीं आता।
और समझ सकते हैं कि जो नेगेटिव लोग हैं वो केवल नेगेटिव ही ढूंढेंगे। ऐसे ही जब पहली बार इलेक्ट्रिक बोट बनी तो एक आदमी उसमें अपने बोट में बना बिठा करके किसी आदमी को पानी के अंदर ले गया। तो वो पानी के अंदर ले गया, उसने बोला बोट कैसी लग रही है, कहता बाकी सब तो ठीक है पर साली रुकेगी नहीं। उसको ये नहीं पता था जिसने बोट बनाई है उसने ब्रेक भी बनाई होगी। तो जो नेगेटिव देखने वाले हैं वो हर समस्या में कुछ ना कुछ मुश्किल निकाल करके रख देते हैं, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, जो समझदार इंसान है, जो कामयाब होना चाहते हैं, वो हर समस्या में कोई ना कोई हल ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, ये आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल करके आया कि दुनिया में 85% लोग, याद रखिए, दुनिया में 85% लोग अपने एटीट्यूड के कारण जॉब पाते हैं, और केवल 15% लोग अपने नॉलेज और जो आंकड़े जिनको हम बोलते हैं फैक्ट्स, उनके बल पे जॉब पाते हैं। और यहाँ से पता चलता है दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू हैव फेथ इन अवर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुलमा रुडोल्फ, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस लड़की का नाम सुना है कि नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो आप लोगों को जरूर इसके बारे में जानना चाहिए। शी वॉज बोर्न इन मेरी फेवरेट कहानी है ये बड़ी गरीब परिवार में लड़की पैदा हुई थी, और जब ये पैदा हुई तो इसको डबल निमोनिया था, साथ ही में इसको स्कारलेट फीवर हुआ, जिसके कारण ये पैरालाइज हो गई और इसको पोलियो हो गया। डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये सारी उम्र नहीं चल पाएगी वो लड़की की, और दूसरी तरफ वो लड़की की जिद ये थी कि मैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। डॉक्टर्स ने कहा ये इम्पॉसिबल है, पर उसकी माँ ने कहा बेटी अगर तू कमिटेड है तो तू जिंदगी में कुछ भी कर सकती है, हर सपना तू अपना पूरा कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। और उसने अपनी माँ की बात सुनी। क्या हुआ, 1956 में उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, और 1960 में 3 गोल्ड मेडल जीत करके उस पैरालाइज लेडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और शी वाज कॉल्ड द फास्टेस्ट लेडी ऑन द अर्थ। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कमिटमेंट। नेवर एवर गिव अप, नेवर लिसन टू पीपल व्हाट दे से। इफ यू आर कॉमन, अगेन मैं बच्चों को जाके 10th क्लास में बताता हूँ, डैम केयर इफ यू स्कोर्ड 40% इन 9th क्लास। 10th क्लास एक नई शुरुआत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं प्लान दूंगा और उस प्लान को फॉलो करो। और मैंने ऐसे चमत्कार होते देखे हैं। यहाँ पर मैं आप सबके साथ एक केस शेयर करना चाहूंगा। 2017 में सीबीएसई, हमारे एजुकेशन बोर्ड में एक बहुत बड़ा चेंज आया। उससे पहले ग्रेड होते थे, तो 2017 में सीबीएसई ने मार्क्स देने शुरू कर दिए। जब मार्क्स देने शुरू कर दिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि, और सीधा ये 10th क्लास में, इन बच्चों पे 9th में एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। आमतौर पे जो भी नई रिसर्च होती है वो 9th में शुरू होती है जिससे बच्चे मेंटली प्रिपेयर हों। ये सीधा जाके 10th क्लास में आई। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज थी कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अंडर डिप्रेशन। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सेमेस्टर दिया था, उससे पहले वो ग्रेड में पास, सीजीपीए था, सीधा ही मार्क्स का सिस्टम आ गया। क्या होगा। मेरे पास 10th क्लास में 160 स्टूडेंट्स थे, और उसमें से एक सुपर सेक्शन था। पहला ईयर था, बच्चे घबराए हुए थे। दिसंबर के महीने में मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर को बुलाया और उससे पूछा कि मैडम आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने इन बच्चों में से, सुपर सेक्शन में से कितने बच्चे 90% से ऊपर जाएंगे। मैडम ने बोला 15-16। I said okay, then I called all the HODs. They said कि सर 16-17, don't expect more than that। ऐसे अच्छी बात है। Then what I did, I made a group of 10 students and called them in my office। उनके प्री बोर्ड के नंबर मेरे सामने परसेंटेज ओवरऑल लिखी हुई थी, और मैंने उन सबको बोला कि तुम्हारे बोर्ड में जो नंबर आने वाले हैं उसको आप मेरे सामने, अपने सामने पेन से लिखो। चाहे किसी के प्री बोर्ड में 70 आए थे, 80 आए थे, अब वो प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े थे और सुपर सेक्शन के थे। सभी ने 90% से, किसी ने 97%, किसी ने 98%, किसी ने, ऑल ऑफ देम दे रोट अबव 90%। और टीचरों को भी पता चल गया था, टीचर उनका मजाक उड़ाते थे, और 90% वाले, आई नेवर मीन्स आई यूज टू मोटिवेट देम कि नहीं हम कर जाएंगे, कर जाएंगे, कर जाएंगे। बच्चों की ये बात समझ आ चुकी थी। मई के महीने में बोर्ड के बाद जब उनका रिजल्ट निकला, वो मेरे सारे दफ्तर में आए, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बेटे व्हाट्स योर रिजल्ट। आंसर था, सर दिसंबर के महीने में लिख गए थे, ऑल ऑफ देम वर अबव 90%। और उससे इंटरेस्टिंग केस जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये हैंडीकैप की बात कर रहे हैं जो हम, उसी साल 9th क्लास में कंपार्टमेंट में 41 बच्चे थे।
जिनकी कंपार्टमेंट आई, उनमें से 21 पास हुए और 20 फेल होकर के स्कूल छोड़ गए, कुछ रिपीट कर रहे थे। जो 21 पास हुए उसमें से 2 लड़के कंपार्टमेंट का रिजल्ट देख के सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में आ गए। मुझे आज तक उनके नाम याद है, दिनेश और अभिषेक। प्रिंसिपल ऑफिस में आके कहते, सर हमने 10th क्लास में बोर्ड में 90% से ऊपर जाना है। आप वहां पर कोऑर्डिनेटर खड़े थे, टीचर खड़े थे, वो मजाक उड़ाने लगे, कहते सर इनका दिमाग खराब हुआ, इनसे प्रॉमिस मत कर देना। आई टोल्ड माई डायरेक्टर सर, कहते देवगन ऐसे कमिटमेंट मत कर दिया कर, कल तेरा मजाक बनेगा। मैंने एक बात कही, मैंने कहा अगर ये बच्चे प्रिंसिपल ऑफिस में आके इतनी हिम्मत रख रहे हैं तो कुछ तो होगा इनके अंदर। मैंने कहा बेटे डट जाओ। वो बच्चे, दोनों बच्चों ने अपने साथ 8-10 बच्चे जो इंटेलिजेंट थे उनको इकट्ठा किया। वो छुट्टी के बाद रोज 1 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी करते थे। मैंने कभी नहीं पढ़ाया, कोई टीचर नहीं होता था, वो एक दूसरे को पढ़ाते थे। सेल्फ स्टडी करना, अगर किसी की डाउट हो एक दूसरे की डाउट क्लियर कर देना। मेरे पास 3 सेक्शन थे। एक सुपर सेक्शन था 90% से ऊपर वाला, एक था 70% वाला। मैंने ये 21 बच्चों को एक ही कमरे में बिठाया था। जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे थे एक साथ स्टडी करते थे। ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट निकले, इनको मेरी कमजोरी पता चल गई। ये मेरे पास दोनों दिनेश और अभिषेक आ गए, बोलते सर आपके एक ही एक रिक्वेस्ट है। मैंने क्या? बोलते हर सैटरडे को आप 15 मिनट हमसे बात करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं हम चमत्कार करके दिखाएंगे। जब मैंने उन पे काम करना शुरू किया, बच्चों ने इंप्रूव करना शुरू किया, दोनों बच्चे परफॉर्म करने लगे, तो टीचर मेरे पास आए, कहते सर इनको सुपर सेक्शन में बिठा दो। मैंने कहा नहीं, ये यहीं पर चमकेंगे और सारी क्लास चमकाएंगे। जब मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया, पहली बात वो दोनों, एक के 91% आए, एक के 93% आए, प्लस सुपर सेक्शन 90% वाली नंबर 2 पे दूसरी क्लास थी, नंबर 3 पे कंपार्टमेंट वाली थी। बोर्ड के रिजल्ट के बाद कंपार्टमेंट वाले टीम नंबर 2 पे आ चुकी थी। दे ऑल पास विद मोर देन 86%, विच इज अ रिकॉर्ड। आप समझ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स की पावर, टीचर्स के शब्दों का जादू होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, बच्चों में जोश पैदा करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए हाँ हम साथ हैं। नेक्स्ट वन। देन बिलीव इन योर सेल्फ, इफ यू थिंक यू कैन डू यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट अगेन यू आर राइट। हेनरी फोर्ड ने कहा है, क्योंकि दोनों ही हालत में करना आप नहीं है, अगर आप मानते हैं आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इट्स बेटर टू डाई फॉर समथिंग देन फॉर नथिंग देन टू लिव फॉर नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट, बहुत अच्छी चीज कही गई है। वन पर्सन विद बिलीफ इज वर्थ 99 हु हैव ओनली इंटरेस्ट। हम सब जानते हैं, जब तक आपको अपने में बिलीफ नहीं है, अपने गोल्स में बिलीफ नहीं है, आपका होना ना होना एक बराबर। नेक्स्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं चाहूंगा कि ये केसेस आप लोग पेन उठा करके नोट करते रहें। ये श्योरली ब्लॉन्टी इनकी, इन्होंने एक रिसर्च की थी 1500 लोगों के ऊपर, और इन्होंने उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो 83% लोग थे, उन्होंने जो कैरियर था केवल इस बात पे चुना कि उन्होंने पैसा कमाना है। और जो केवल 17% लोग थे, उनका ये मानना था कि हम अपना कैरियर अपने पैशन के हिसाब से ढूंढेंगे। आप लोगों को बता दूं, हर रिसर्च का रिजल्ट 20 साल बाद निकाला जाता है। तो 1982 में जब उन्होंने उस रिसर्च का रिजल्ट पब्लिश किया, तो उसमें ये पाया कि उन 1500 लोगों में से 1500 में से 1101 लोग थे वो मिलनायर थे। और उस 101 में से केवल एक था जो पैसे के लिए था, 100 वो थे जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया था। फॉलो योर पैशन। ओके, आप सब अलग हैं। मैं बार बार कहता हूं, बच्चों में डिप्रेशन मत आने दीजिए कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। इसके अलावा भी जिंदगी है, और जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। अगर वो अपना पैशन फॉलो करते हैं और पेरेंट्स की सपोर्ट है, देन दे कैन डू मैजिक। नेक्स्ट वन। देन दीज आर माय फेवरेट लाइंस। ये मेरी लाइन है, बड़ी फेमस की, कमिटेड पीपल कैन प्रेडिक्ट सक्सेस, गोल्स वंस रिटन बिकम कमिटमेंट, नथिंग ग्रेट वाज एवर अचीव्ड विदाउट कमिटमेंट। Promise says, what is difference between promise and commitment? Promise says I will try, commitment says I will give my life to it. जान लगा दूंगी, कैसे नहीं होगा। If one can do, I can too. Ship in ship in a harbor is safe, but for that it is not made. So we must try. We must. I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. After every battle, I say this, and I believe कि जो मेरा कमिटमेंट है वो मुझे जीत की तरफ ले जाएगा, जीत की तरफ लेके जाएगा। ये येल यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल में 1953 में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें ग्रेजुएशन के केवल 3% लोगों ने अपने गोल्स लिखे थे कि जिंदगी में क्या करने वाले हैं।
और 20 साल बाद जब उसको रिसर्च में पाई गई तो उसमें पाया गया कि जो ये 3% लोग थे, इनकी जो नेटवर्थ थी इट वाज मोर देन दोज 97%। ये कमिटमेंट का ही जादू है। नीचे की लाइनें जो है वो आप सबको ध्यान मतलब समझ में ध्यान में रखनी चाहिए। जो बैम्बल बी होती है ये इतनी हैवी होती है, और मींस ये बहुत हैवी होती है और इसका विंग स्पैन बहुत छोटा होता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि बैम्बल बी कैन नॉट फ्लाई, बट बैम्बल बी को पता ही नहीं होता है और ये उड़ती रहती है। जब तक आप अपनी कमजोरियों पे ध्यान नहीं देंगे वो आपको डोमिनेट नहीं कर पाएंगी। आपकी कमजोरियां आपकी आदतों से, आपकी सोच से आप पर इफेक्ट करती हैं, इस चीज से नहीं कि क्या। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कमजोरियां नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन कमजोरियों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास है उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दुनिया भरी पड़ी है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दशरथ मांझी का है। दशरथ मांझी, उसकी वाइफ बाथरूम में स्लिप हो गई और उसकी ब्लीडिंग होने लगी, शी वाज प्रेग्नेंट, ब्लीडिंग होने लगी। जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, औरत की डेथ हो चुकी थी। उसके घर से हॉस्पिटल का रास्ता पहाड़ों की जो थ्रू था, आई थिंक इट वाज 20 किलोमीटर। दशरथ मांझी ने हाथ में अकेले छैनी पकड़ी और पहाड़ काटने निकल पड़े। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पहाड़ काटने खाली छैनी और हथौड़ा लेके निकला है। जब दशरथ मांझी लगे रहे, ऐसा माना जाता है, ये इतिहास गवाह है इस बात का, उन्होंने उस उनका जोश देकर के लोगों ने उनको ज्वाइन किया और उन्होंने 20 किलोमीटर के रास्ते को 2 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया था। और साथ ही में उनकी एक बड़ी फेमस लाइन है जो याद रखिएगा, भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। ओके, ही सेंड्स हिज मैसेंजर, यू कैन बी दैट मैसेंजर। द नेक्स्ट वन, हाँ, कैरोलोटेकस, ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। मैं ये चाहूंगा आप सब लोग इसको नेट पे जाकर के इनका वीडियो भी है जरूर देखिए। ये हंगरी के एक सोल्जर थे 1938 में। इनको पिस्टल मींस ही वांटेड टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स विद पिस्टल शूटिंग। तो 1938 में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और क्या हुआ कि उसी साल इनके हाथ में ग्रेनेड ब्लास्ट कर गया और जिस हाथ से ये बंदूक चलाते थे वो हाथ उड़ गया इनका। तो 1939 में जब नेशनल गेम्स हो रहे थे इनके यहाँ हंगरी में, तो ये वहां पर गए। तो जो इनके मीन्स फ्रेंड्स थे सबने सोचा ये चीयर करने आए हैं। इन्होंने कहा मैं चीयर करने नहीं आया हूँ, आई एम हियर टू पार्टिसिपेट। और इन्होंने वहां पर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, जो 1940 में ओलंपिक्स गेम्स होने थे वो वर्ल्ड वार टू के कारण पोस्टपोन हो गए और वो गए 1944 में। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी। 1944 में भी ओलंपिक्स नहीं हो पाए किसी कारण से, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस के कारण, और वो गए 1948 में। कैरोली ने 1948 तक वेट किया और 1948 के ओलंपिक्स में कैरोली ने गोल्ड मेडल जीता। कैरोली ने 1948 में जीता, उसके बाद 52 में जीता, और वो वर्ल्ड के पहले इंसान बन गए जिन्होंने रैपिड फायर 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में 2 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता था। इनका वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। और मैं सब आप सबको कहूंगा, आप सबके अंदर एक कैरोली है, आप सबके अंदर एक दशरथ मांझी है, आप सबके अंदर एक सचिन तेंदुलकर है, आप सबके अंदर एक युवराज है। मैं फिर ये बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इब्राहिम लिंकन ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दुनिया में 98% लोग एवरेज पैदा होते हैं, केवल 2% जीनियस होते हैं, मोनिका की तरह 98% मेरी तरह होते हैं। तो जो 98% में से 2% है ना, वो अपने कमिटमेंट से ही कामयाब हो सकते हैं। तो वो कमिटमेंट कभी मत छोड़िए। सेल्फ बिलीव कैन मूव द माउंटेन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और आजकल बड़ी फेमस किताब आई हुई है एटॉमिक हैबिट्स में। आप सबसे कहूंगा कि जरूर पढ़िए एटॉमिक हैबिट्स। 110 साल तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए थे, और हालत ये हो गई थी कि यूरोप के जो टॉप के साइकिलिस्ट थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इनको साइकिल ही नहीं बेचेंगे, अगर लोग ब्रिटिश साइकिलिस्ट के हाथ में हमारे साइकिल देखेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। 2003 में सर डेविड ब्रेल्सफोर्ड ने वहां पर एज अ हेड कोच ज्वाइन किया। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे उनकी बड़ी फेमस लाइन लगती है कि डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज राइट यू विल 100% गेट द गोल्स। उन्होंने ये कहा, इनके कोच साहब की एक बड़ी फेमस लाइन है, इफ यू गेट बेटर बाय 1% एवरी डे एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी इम्प्रूव बाय 37 टाइम्स। 37% नहीं, 37 टाइम्स, अपने आप को 37 टाइम्स इंप्रूव कर सकते हो। उनकी बिलीफ का, जो उसकी बिलीफ थी, उनका हार्ड वर्क था, उनका हैबिट था। उन्होंने कहा कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी छोटी आदतों पे। एटॉमिक हैबिट्स इसलिए इसका नाम है। 2003 में उन्होंने एज ए हेड कोच ज्वाइन किया था और 2008 में
ब्रिटिश टीम ने ओलंपिक्स के 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए थे और 9 ओलंपिक रिकॉर्ड बनाए थे और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। मैं आपको इस किताब के बारे में बहुत कम बता रहा हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एटॉमिक हैबिट्स पढ़िए और अपनी जिंदगी बनाइए। Then my favorite topic, D for dreams. You have to have a dream to make your dream comes true. आपके पास एक सपना जरूर होना चाहिए सपना पूरा करने के लिए। When it is the question of dreams, facts don't count. मेरी favorite line है ये। Your dreams are the blueprint of your success story. Dreams are not what you see when you sleep. Dreams don't allow you to sleep. ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी फेमस लाइन है। सपने देखो, भरोसा रखो और आगे बढ़ो। ब्रूस ली, द मैन हु मेड हिज ड्रीम्स कम ट्रू। ये बड़े इंटरेस्टिंग लाइन है, मैं चाहूंगा जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोग भी पढ़ें ध्यान से। इन 1980 आई विल बी द बेस्ट नोन ओरिएंट मूवी स्टार इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल हैव सिक्योर 10 मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड इन रिटर्न आई विल गिव बेस्ट। मीन्स मैं जो एक्टिंग करूंगा उसमें बेस्ट दूंगा, मैं अपने एक एक रोल के लिए अपनी जान लगा दूंगा और मेरे पास एक शानदार जिंदगी होगी। ब्रूसली ने ये लेटर खुद अपने आप को लिखा था 1917 9 जनवरी 1970 में, और उन्होंने जो टारगेट रखा था 10 साल बाद के लिए लिखा था, और 3 साल बाद उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो जो उन्होंने 10 साल का टारगेट रखा था वो 3 साल में लिया। ये किस कैसे क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, गोल्स वंस रिटन बिकम कमिटमेंट। जो जब आप कोई भी चीज लिख लेते हो ना, तो आप उसको वो 3% ग्रेड जो मैंने बताया है ना, जो 3% ग्रेड लोग हैं, आप उसमें आ जाते हो। और जब आप उसमें आ जाते हो तो सोचिए कि आप दुनिया के 3% महानतम लोगों में आ गए। इसका मतलब आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने कमिटेड है। मैं बार बार कहूंगा, लिखने का मतलब ये है कि मेक अ प्लान, एंड देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड प्लानिंग। प्लान का मतलब होता है खाली पेपर पे, प्लानिंग का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। मैं रोज सुबह 1 घंटा पहले अपने स्कूल जाता हूँ, तो मेरे को एक बार किसी ने डांटा, बोले तू 1 घंटा पहले आता, तुझे फायदा क्या होता है? मैं सब जाकर के, मेरे पास 8 कोऑर्डिनेटर है, मैंने 8 कोऑर्डिनेटर के लिए एक एक पेज रखा हुआ है। मैं टास्क लिखता हूँ और सुबह उनको फोन करके या स्लिप पकड़ा देता हूँ कि शाम तक मुझे ये काम चाहिए। एंड आई एम वेरी लकी टू हैव सच वंडरफुल टीम। मेरी जो टीम है, दे आर जेम्स, दे आर डायमंड्स, आई एम प्राउड ऑफ देम। पीपल से कि हाँ, मैं कई बार मेरी बोर्ड की ड्यूटी लगती है, मैं 15-15 दिन बोर्ड की ड्यूटी पे जाता हूँ, लोग हैरान होते हैं 6,500 बच्चा आपका स्कूल में बैठा है, सर आप स्कूल कैसे छोड़ सकते हो? तो मेरी बड़ी फेमस लाइन है प्रिंसिपल्स के लिए, याद रखिएगा, अगर आप इसको समझ पाए तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन किया गया कि हु इज द बेस्ट प्रिंसिपल? A good principal is the one who says, if you want to see my importance, go and see when I am not in school. Big chaos is there. मैं नहीं होता तब जाकर के देखना स्कूल की क्या हालत होती है। Better principal said, if you want to see my importance, come and see when I am in school, how smoothly it is running. Everything is at its right place. The best principal said, go to my school and see whether I am there or not, it is running in the same manner. It always runs smooth because I have made such a strong team. हम सबको नेवर थिंक ऑफ क्रेडिट। हमारी ज्यादातर हार का कारण यही होता है कि हम क्रेडिट में फंस जाते हैं कि क्रेडिट किसको मिलेगा। जो पहले वर्ल्ड के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे, किसी ने पूछा था कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? यू आर द बेस्ट लीडर, यू आर द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। उनकी लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि जब मैच ड्रॉ होता है तो मैं ये बात कहता हूं कि हम सब अच्छा खेले। जब हम मैच जीत जाते हैं तो मैं ये कहता हूं मेरी टीम बहुत अच्छा खेली। और जब हम मैच हारते हैं तो मैं ये कहता हूं मेरी गलती से हम मैच हारे। अगर आप अपने अंदर ये स्पिरिट ला सकते हो तो फिर आप कामयाब लीडर हो, तब आप जीत सकते हो। नेक्स्ट, E for empathy. The humble you are, the higher you go. Your behavior, your responsibility, good manners will open doors that the best education cannot. किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, आजकल बड़े एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप उससे आगे बढ़िए जो आपने स्कूल में पढ़ा है। जो आपने स्कूल में पढ़ा है उससे आप कामयाब नहीं हो सकते। जब आप उससे आगे बढ़ जाएंगे तभी आप कामयाब होंगे। याद रखिए, हम लोग आमतौर पर कहते हैं वेस्ट के पीपल बहुत कामयाब हैं, पर ऐसा माना जाता है वेस्टर्न पीपल्स they read about 50 to 60 motivational books in a year and we Indians don't read even 2 or 3 books. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे घर पे आकर के देखिए, मेरे घर पे 75% एरिया जहां सामान रखा जा सकता है बुक से भरा हुआ है। इट्स माई ड्रीम दैट व्हेन आई डाई आई एम बर्न्ड ऑन बुक्स। ये मेरा सपना है कि किताबें मेरे साथ जाए। इसलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
नेक्स्ट वन। ये मेरी फेवरेट कहानी है, मैं आप सबको चाहूंगा इसको ध्यान से सुने और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक लड़की पपी खरीदना चाहती थी, छोटा पिल्ला खरीदना चाहती थी। वो शॉप पे गई और उसने वहां पर देखे ढेर सारे पपीज थे। उसने एक शॉपकीपर को दिखाया, साइड पे एक व्हाइट कलर का पपी पड़ा था। उसने कहा अंकल मैं ये पपी खरीदना चाहती हूँ, इसको मुझे दे दो। शॉपकीपर ने मना किया, बेटे मैं ये आपको पपी नहीं दे सकता, ये रहने दो, ये साइड पे पड़ा है। वो लड़की बार बार जोर डाल रही थी, कहती सर प्लीज प्लीज मुझे यही चाहिए। तो आदमी को उस पर तरस आया और उसने उसको खेलने को दे दिया। वो लड़की थोड़ी देर तक उस पपी के साथ खेलती रही और फाइनली उस शॉपकीपर के पास आके बोली कि अंकल ये मुझे बेच दो। तो वो आदमी बोला नहीं बेटे इसको नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में हम इसको मारने वाले हैं, इसको खत्म करने वाले हैं। लड़की ने पूछा क्यों? कहता है क्योंकि इसकी एक टांग खराब है और जो डॉगी ऐसे हैंडीकैप हो जाते हैं उनको पॉइजन करके खत्म कर दिया जाता है। लड़की बोलती मैं तो यही लूंगी। दुकानदार ने बोला किस लिए? लड़की ने अपनी स्कर्ट ऊंची ऊपर उठाई और उसका एक पाँव नहीं था। उसने बोला अंकल अगर इसका एक पाँव खराब है तो इसका क्या कसूर है? इम्पैथी इम्पैथी और सिंपैथी में फर्क समझ लीजिए। सिंपैथी का मतलब ये होता है मैं जानता हूं आपको दर्द हो रहा है, और इम्पैथी का मतलब ये होता है मैं आपका दर्द महसूस कर रहा हूं। जिस दिन आप वो दर्द महसूस करना सीख जाते हैं ना, उस दिन आप जान जाते हैं कि रियल लाइफ क्या है। इससे रिलेटेड मैं आप सबको एक कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं है, ये रियल केस है, मैं चाहूंगा आप इसे सीखें, अच्छे इंसान बने। यूके में ये रात के करीब 11:30-12 बजे हुए थे, बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। एक 60-70 साल का हस्बैंड वाइफ होटल में एंटर किया और उन्होंने कहा हमें कमरा चाहिए। तो उस वक्त रिसेप्शन पे मैनेजर नहीं था, रात के 11 बजे हुए थे, वहां पर कोई अटेंडेंट था, लड़का क्लर्क था। उसने बोला अंकल इस टाइम पर आपको होटल में कोई कमरा नहीं मिलेगा, इट इज नॉट बुक्ड इट इज ओवर बुक्ड। तो उन्होंने बोला और कोई होटल बता दो। तो वो लड़का बोला अंकल आसपास आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उस वक्त यूके में कोई फंक्शन चल रहा था, जैसे ओलंपिक्स वगैरह कोई गेम थे, जिस कारण से वहां पे सारे होटल्स ओवर बुक थे। वो औरत रोने लगी। उस औरत ने कहा बेटे आप अपने अंकल की उम्र देखो, हम क्या करेंगे? लड़के ने पूछा एक सिंपल सवाल, बोला आंटी आपकी फ्लाइट सुबह कितने बजे, आपकी बाई एयर कितने बजे की है, फ्लाइट कितने बजे की है? बोली 8 बजे की। लड़का बोला आंटी मेरी ड्यूटी 10 बजे तक है, आप मेरे कमरे में सो जाओ। वो औरत बोली नहीं नहीं बेटे आप परेशान होंगे। बोलता मैं ड्यूटी पे मैं कहाँ सोऊंगा? और उसने पीएन को बुलाया, कमरे की डस्टिंग करवाई, बूढ़ा और दोनों जाने उसके कमरे में जाके सो गए। जब वो उसके कमरे में जाके सो गए, सुबह 8 बजे जब वो जाने लगे तो उन्होंने उस लड़के को हल्की सी टिप दी और साथ में उस बुजुर्ग ने कहा बेटे यू डिजर्व टू बी द मैनेजर ऑफ बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। वो लड़का बोला अंकल आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं तो अनाथ बच्चा हूँ, मैं पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाई किया यहाँ पर। दैट ओल्ड मैन सेड नो माय डियर आई मीन इट। कह के वो चले गए। 2 साल बाद न्यूयॉर्क से एक टिकट आई अप एंड डाउन की थी और उसके साथ में अबाउट $2000 थे, जो उस लड़के को उस बुजुर्ग ने भेजे थे कि बेटे आके मुझसे मिलो। वो लड़के ने सोचा चलो मेरा घूमना फिरना हो जाएगा, उसने फ्लाइट पकड़ी और वो न्यूयॉर्क चला गया। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहां पर एक गाड़ी उसका वेट कर रही थी। वो उस गाड़ी में बैठ करके एक होटल में गया, वहां पर 8-10 लोगों ने लगातार उसका इंटरव्यू लिया। वो पहचान चुका था उस बूढ़े को जिसको रात को उसने कमरा दिया था। जब वो उस कमरे से निकला तो उस बुजुर्ग ने उसको कार में बिठाया और न्यूयॉर्क के बाहर ले आए, जहां पर 26 फ्लोर का एक होटल था, जो आज भी दुनिया की बेस्ट होटल्स में जिसका नाम आता है। अगर आप में से कोई चाहेगा, ये यू इनकॉर्पोरेट बुक के अंदर पूरा केस है। उस लड़के को उस आदमी ने बोला आज से आप इस मैनेजर होटल के मैनेजर हैं। लड़का बोला अंकल आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? कहते बेटे नहीं इसका नाम पढ़ो, ये मेरे नाम पर है। And really that hotel was after the name of that old man, and that man became the first manager of that hotel. जो सिंपैथी है, इम्पैथी है, इनमें सच में जादू है। किसी का दर्द महसूस करके देखिए, बड़ा सुकून मिलता है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, यू मस्ट नो हॉल ऑफ फेम इज नॉट मेड फॉर ऑर्डिनरी पीपल। कामयाबी मुफ्त नहीं मिलती है, ये हर किसी के लिए नहीं है। ये उसके लिए, उनके लिए है जो मर के जीना सीखते हैं, जो जानते हैं कि कामयाबी चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। मैं आपको मीन्स अगर अपनी रूटीन बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि क्या ये सही है। कई बार लोग बोलते हैं, मैं दशमेश स्कूल के साथ 9 साल से ऊपर जुड़े हुए हो गए। 2001 में 2021 में कोविड टाइम पर मुझे फरीदकोट हेड ब्रांच में एज अ प्रिंसिपल प्रमोट करके भेजा गया।
तो जब मैं यहाँ पर आया तो एक बड़ी मीन्स मैंने देखा यहाँ पर हॉस्टल में उस वक्त गिने चुने बच्चे थे, पर 9, 10, +1, +2 के बच्चे बुला लिए गए थे क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम होने थे। तो मेरे पास 10th में 4 बच्चे थे, 9th में 4 बच्चे थे। +1, +2 के बच्चे अपने आप ही मैच्योर होते हैं, उनकी कंसर्न नहीं थे। मेरा कंसर्न था 9th और 10th के बच्चों का। यहाँ पर बच्चे फेल होते हैं। जब प्री बोर्ड हुआ तो बच्चों के 40 नंबर का पेपर था, किसी के 4 नंबर, किसी के 5 नंबर। तो वार्डन मुझे बोली, और उस जितने मेरे कोऑर्डिनेटर सामने हैं, आप इनसे ये गवाह हैं इस बात के कि उससे पहले जितने हॉस्टल के बच्चे थे, देवर कॉल्ड डफर्स। उनको डफर कह के बुलाया जाता था। वार्डन बोली, सर ये पास नहीं होने वाले हैं। मैंने कहा हमारे होते हुए ये बात कैसे हो सकती है। शाम को 6 बजे मैं हॉस्टल गया, मैंने वार्डन को बोला सारे बच्चों को लेके स्कूल पहुंचो। वो नहीं आई, मैं दोबारा गया 6:30 बजे। वो कहती सर ये आते नहीं, मेरा कहना नहीं मानते। मैंने कहा फिर नौकरी छोड़ दे, अगर ये तेरा कहना नहीं मानते। वो समझ चुकी थी मेरा इशारा, वो बच्चों को लेकर के। ये जनवरी 21 की बात है और आज 24 है। उस दिन से लेके आज तक बच्चे, मैं सुबह 5:30 बजे जाके हॉस्टल की बेल करता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ। 6 से 7 वो सेल्फ स्टडी करते हैं और रात को 6 से 8:30 बजे तक मैं उनके साथ होता हूँ। और आज मैं फक्र से कहता हूँ मेरे हॉस्टल के सारे बच्चे मेरिट में हैं। उन 4 बच्चों में से एक बच्ची के 93% आए थे, और जो 3 बच्चे थे उनके 86% थे। 9th में सारे बच्चे शानदार नंबरों से पास हुए। मैं अपनी बात, मैं एग्जाम्पल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसा ऑर्डिनरी इंसान अगर ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं। इफ आई कैन डू, यू कैन डू। नेक्स्ट वन। चलो अब है स्टोरी टाइम, इसको ध्यान से सुनिए और अगर हो सके पेन पेपर उठाइए और साथ में नोट करते जाइए। बैलून मैन, माय फेवरेट स्टोरी। आप में से कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा। एक बार एक आदमी अपने बच्चे के साथ समुद्र के किनारे घूम रहा था, वहां पर एक आदमी बैलून बेच रहा था। तो बच्चे ने अपने डैडी से एक क्वेश्चन किया कि डैडी, ये जो रेड बैलून है ये ऊपर जाता है, ये येलो जाता है, ब्लू जाता है, क्या ब्लैक बैलून भी ऊपर जाता है? वो क्योंकि ब्लैक तो नेगेटिव माना जाता है। तो उसके फादर ने जवाब नहीं दिया। उसने बोला चलो हम बैलून मैन से पूछते हैं। वो बैलून मैन के पास गया, जो द मैन हुआ सेलिंग द बैलून। उसने पूछा कि अंकल क्या बैलून जो ब्लैक कलर का है, ये भी ऊपर जाता है? तो उस आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते बेटे, बैलून का कलर नहीं, उसके अंदर का जज्बा इसको ऊपर लेके जाता है। उसके अंदर कौन सी गैस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके माँ बाप अनपढ़ थे, आप गरीब फैमिली से आते हो, आपका घर का माहौल क्या था, आपके दोस्त कैसे थे, आप स्टडीज में कैसे थे। डिपेंड इस चीज पे करता है कि आज अपने आप को आपने कितना बदला, आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अगर आपके अंदर जान है तो फिर आप आसमान छू सकते हो। बड़ी अच्छी लाइन है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मंजिल खुद चलकर आएगी, आप पहला कदम उठाइए। जो पहला कदम उठाते हैं वही मंजिल को पाते हैं, जो बैठ किनारे राह देखें वो बैठे ही रह जाते हैं। खुदा सभी से कहता है, जो सोता है वो खोता है, जो पहला कदम उठाते हैं वही मंजिल को पाते हैं। पहला कदम उठाते ही मैंने मंजिल को देख लिया, क्योंकि रास्ता मैंने नेक लिया, मैंने रास्ता सबसे नेक लिया। क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। ये मेरी लिखी हुई कविता है और बहुत पॉपुलर है, लोगों की बच्चों की जुबान पर है। दूसरा है बाउंसिंग बैक बैग, बाउंसिंग बैक बैग। ये मेरी किताब मिरेकल ऑफ कमिटमेंट, मैंने जो मेरे दोस्त सामने मिसेस मोनिका बैठी हैं, डॉक्टर वी सिंह बैठे हैं, इन सबको मैंने गिफ्ट की थी। उसका पहला केस है। एक फादर अपने बच्चे को लेकर के टॉय शॉप पे गए और वहां पर जो हिट मी बैग होता है ना, जिस बैग को हिट करो वो दोबारा छलांग मार जाता है, बाउंस बैक करता है। तो फादर अपना सामान खरीदने गए तो बच्चा उसको हिट कर ही जा रहा था। तो उसके फादर वापस आए, उन्होंने एक क्वेश्चन किया बेटे से कि बेटे ये बैग गिरने के बाद वापस क्यों उड़ जाता है? बेटा बोला मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर लगता है अंदर से मजबूत है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो वक्त की ठोकरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लोगों के शब्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बात कही है, इन द जर्नी टू सक्सेस पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू, टर्न दो स्टोन्स इनटू माइलस्टोन्स। यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा जो मेरा अपने साथ बीता हुआ है, साथ ही में आपको लिखी हुई अपनी एक कविता भी सुनाऊंगा। कई बार आप, जैसे आज की वर्कशॉप है, मैंने आपसे ये कहा कि ये क्यों, ये वर्कशॉप क्यों करनी चाहिए। वैसे ही मैं उस वक्त आर्मी स्कूल में काम कर रहा था, मेरा आदत है लिख करके आपने कागजों में लिख के कुछ फेंक दिया। मेरे घर पे एक मेरा दोस्त आया, अरुणेश श्रीवास्तव था, आया घर पे और उसने मेरा एक कागज देखा, बोला देवघर में ये कागज ले जाऊं? मैंने कहा ले जाओ। उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता था। हम बड़ा समझाते थे,
मैं उसके घर गया तो मैंने देखा मेरा वो पन्ना उसकी वाइफ ने फ्रेम करके शीशे में लगाया हुआ है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि भाभी ये क्या है? बोलती जब भी ये डिप्रेस्ड होते हैं तो मैं इनको बोलती हूँ इसको पढ़ो। तो वो कविता है जो मैंने बहुत बच्चों की जुबान पे है कि हे नरगर तू जिंदा है तो काहे को शर्मिंदा है। शर्मिंदा कायर होते हैं जो समय को जाया करते हैं और तान के चादर सोते हैं। जो गिरा नहीं संभलेगा क्या, जो झुका नहीं उठेगा क्या। गिरना झुकना कोई शर्म नहीं, रुक जाना तेरा कर्म नहीं। बिन वियोग यहाँ पर प्रीत है क्या, बिन हार यहाँ पर जीत है क्या। हर हार हमें बतलाती है कि जीत समय पर आती है। तो हे नरगर तू जिंदा है तो काहे को शर्मिंदा है। घबराओ मत, छलांग मारो। लोगों को कहने दो बी लाइक टेनिस बॉल व्हेन यू बाउंस बैक, पीपल से वाह कमाल हो गया। सीखना है तो इस इंसान से सीख। अगली कहानी अगेन मेरी फेवरेट है। दो दोस्त आइसबर्ग पे खेल रहे थे, जोर जोर से छलांगे मार रहे थे। अचानक उसका एक पीस टूटा और एक फ्रेंड पानी के अंदर चला गया। जब पानी के अंदर चला गया तुरंत उसके ऊपर लेयर बन गई। लेयर बहुत मोटी थी। जो लड़का बाहर था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे दोस्त को बचाओ, मेरे दोस्त को बचाओ। पर कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करने को वहां पर तैयार होता। अब कंसर्न ये था कि उसको बचाया कैसे जाए। उस लड़के ने देखा कि पास ही में एक पेड़ है। उसने उसकी टहनी तोड़ी और वहां पे मारना शुरू किया जहां पर उसका दोस्त गिरा था। थोड़ी देर में उसके हाथ से खून बहने लगा और उसने निकाल लिया उस आदमी को बाहर। जब उन्होंने उसको बाहर निकाला, अपने दोस्त को बाहर निकाला, वो जिंदा था। उसने हाथ पांव मले, अच्छी तरह से मालिश मुलिश की। इतने में भीड़ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कंबल में लेटा, बच्चा नॉर्मल था। अब सवाल ये था कि आइसबर्ग को तोड़ा किसने। सब अब बच्चा चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। सब कहें बकवास कर रहा है, इसको तो हम नहीं तोड़ सकते। बच्चा एक ही बात कह रहा था, मैंने तोड़ा है। ये आप सबके लिए है, यहाँ से सीखिएगा। तो वहीं पर से वहां पर एक टीचर गुजर रहा था। उसने बोला क्या बात होगी? कहते ये बच्चा कहता है मैंने आइसबर्ग तोड़ा है। कहते हाँ इसी ने तोड़ा है। सोचने की बात यह है कि वो बच्चा वो आइसबर्ग क्यों तोड़ पाया। देखिए जो पानी में डूबा दोस्त था ना, वो आपके सपने हैं। याद रखिए, पानी में डूबा हुआ दोस्त वो आपके सपने हैं। जो बीच में लेयर है ना वो सोसाइटी है जो आपको रोकती है। और अपने हाथ से चाहे लहू बह जाए, खून बह जाए, आपको वो तोड़ना है। वो लेयर तोड़ के अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना है। तो टीचर ने कहा ये आइसबर्ग इसलिए तोड़ पाया क्योंकि जब ये तोड़ने की कोशिश कर रहा था कोई ये कहने वाला नहीं था तू नहीं कर सकता। याद रखिए, कोई कमजोर बच्चा जरा सी इंप्रूवमेंट करता है, हम तुरंत कहते हैं तेरे बस की बात भी रहने दे। अपनी शक्ल देखी है, अपने माँ प्यो देखे है। नो और नो, नेवर नेवर एवर। बी पॉजिटिव, हौसला बढ़ाइए। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। मील के पत्थर मत देखिए, आगे बढ़िए, सपने देखिए और लोगों को देखने सिखाइए। अगली कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जब मैंने ये कोटकपुरा स्कूल में पहली बार सुनाई थी तो मुझे पेरेंट्स की चिट्ठियां आई थी कि क्या हमारे बच्चों को इतनी बेहतरीन एजुकेशन दी जा रही है, और दी जा रही है तो सोसाइटी में चेंज क्यों नहीं आएगी। एक लड़का, मीन्स इट वाज यूनिवर्सिटी के फाइनल मैच थे, यूनिवर्सिटी लेवल के फुटबॉल मैच हो रहे थे, फाइनल मैच था। यूनिवर्सिटी ने उस दिन चैंपियनशिप जीतनी थी। एक लड़के ने अचानक ग्राउंड में आया और उसने अपने कोच से कहा सर मुझे खेलने दो। ही वाज इन यूनिफॉर्म। कहता सर मुझे आज खेलने दो, प्लीज मुझे आज खेलने दो। कोच ने बोला कि यार आज तक तू पानी पिलाता रहा, तूने कभी भी मेन टीम में नहीं खेला, मैं तुझे कैसे मौका दे दूं। नहीं मैं तुझे नहीं। लड़का रोने लगा, कहता सर प्लीज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, आज खेल लेने दो प्लीज, मुझे आज मौका दे दो। कोच को उस पर तरस आया। उसने कहा ठीक है, मैं तुझे 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 15 मिनट बाद वापस आ जाना। लड़के ने कहा थैंक्स। कोच के पांव छुए और ग्राउंड के अंदर गया। वो लड़का उस दिन दौड़ नहीं रहा था, वो उड़ रहा था, हवा में उड़े हिरन की तरह। और 15 मिनट के अंदर उसने 3 गोल कर दिया। कोच हैरान, क्योंकि ऑपोजिशन बड़ी स्ट्रांग थी। कोच ने बोला सारा मैच खेल। लड़के ने मैच खत्म होते होते 6 गोल किए एंड ही वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द गेम। अब जब बच्चा वापस आया, सब उसको कंधे पे ला रहे हैं, कोच अपने बाल खींच रहा था। बच्चे ने बोला क्या बात होगी? कहता कोच बोला मैं द्रोणाचार्य हूं, मैं अर्जुन को नहीं पहचान पाया। क्यों? बच्चा बोला सर आपका कसूर नहीं है। बोला क्यों? कह रहे सर आज पापा मैच देख रहे। कोच बोला अच्छा, कहानी शुरू नहीं हुई यहाँ से, खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू होती है। कोच बोला तेरे पापा मैच देख रहे हैं? जब तू प्रैक्टिस करता था मैंने देखा तेरे पापा वहां बेंच पे बैठे होते थे, आज तो बैठे नहीं है। तू कह रहा आज मैच देख रहे हैं।
लड़का बोला सर आपको एक बात बतानी थी, मैं पिछले 15 दिन से नहीं आया ना। कहते हाँ। कहता 15 दिन पहले पापा की डेथ हो गई। कहते अच्छा। कहता सर आपको पता नहीं, मेरे पापा अंधे थे, ब्लाइंड थे, मुझे पता था उनको दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्यों खेलूं। आज ना वो मुझे सूरज से देख रहे हैं और आज मैं उनके लिए खेल। आप समझिए, आपकी जिंदगी आपकी जिंदगी नहीं है, इस पर आपके माँ बाप का हक है, आपके बच्चे का हक है, आपकी पत्नी का हक है, आपके दोस्तों का हक है। याद रखिए, आपके एक 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 केस से एक एक एक्शन से उनकी जिंदगी पे असर पड़ता है। मेरे साथ के एक प्रिंसिपल हैं, बहुत अमीर फैमिली से हैं, करोड़पति हैं। उनकी मैनेजमेंट से डिस्प्यूट हो गई। मैनेजमेंट ने ये कहा कि अगर कल सुबह तो कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ तो तुझे टर्मिनेट कर देंगे। तो जो उनकी वाइस प्रिंसिपल है वो मेरी अपॉइंट की हुई थी, मेरी शागिर्द थी। उसने मुझे रात को फोन किया, कहती कि सर आपके दोस्त की जॉब खतरे में है, काइंडली उसको बचा लीजिए। मैंने अपने दोस्त को फोन करके कहा, मैंने कहा तू सुबह वहां बैठा होना चाहिए। कहता सर मैं 2 साल तक घर पे बैठा रहा हूँ, तब मैं नहीं भूखा मरता। मैंने एक ही बात कही थी। मैंने कहा तू घर बैठा रहा, शाम को जब तेरी बेटी आएगी स्कूल से और देखेगी पापा घर बैठे हैं, उन पे क्या बीतेगी। तेरी वाइफ तुझे कुछ बोलेगी नहीं, पर उस पे क्या बीतेगी। बिलीव मी, अगले दिन मेरा दोस्त उस कुर्सी पे था और उसने तब से लेके आज तक वहीं टिका बैठा है। आप समझ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सी कि ये हमारी जो जिंदगी है ये किसी की देन है। इस पे बहुत लोगों की नजर है और बहुत लोगों को ये प्रभावित करती है। अगली कहानी, अगेन गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेरी फेवरेट कहानी में से है। ये हर प्रिंसिपल को, हर टीचर को आनी चाहिए। एक राजा था, उसको पक्षी पालने का बड़ा शौक था। तो एक दिन उसको एक आदमी चील के 2 बच्चे दे गया। अब राजा ने देखा कि चील का एक बच्चा तो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, दूसरा उड़ ही नहीं रहा है। राजा ने बड़ी कोशिश की ट्रेन करने की, नहीं हो पाया। राजा ने अनाउंस कर दिया है कि जो इस चील के बच्चे को जो नहीं उड़ता है, इसको उड़ना सिखा देगा, मैं उसको 100 सोने की अशर्फियां दूंगा, गोल्ड कॉइन्स। पर अगर नहीं सिखा पाया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अब बड़े बड़े लोग पीछे हट गए, कोई आगे नहीं आ रहा, कोई भी तैयार नहीं था ये रिस्क लेने को। अचानक एक बिल्कुल अनपढ़ इंसान आगे आया। उसने बोला सर महाराज क्या ये काम मैं कर सकता हूँ। राजा ने बोला तुम्हें पक्षी पालने आते हैं। कहता नहीं, पर मैंने जिंदगी देखी है, मुझे मौका दीजिए, रिस्क ले रहा हूँ। राजा ने उसको दोनों बाज के बच्चे दे दिए। वो दो 1 महीने बाद वापस आया जब राजा के पास, राजा ने उड़ा करके देखा तो दोनों बराबर उड़ रहे थे। जो कमजोर था वो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहा था। राजा हैरान रह गया। उसने सोने की अशर्फियां उस आदमी को दी और उससे पूछा तुमने इसको उड़ना कैसे सिखाया। बोला उड़ना क्या सिखाना था महाराज, जिस डाल पे जाके ये बार बार बैठ रहा था मैंने वो डाल ही काट। आप समझ रहे हैं, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हर बच्चे को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, खुद उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं आप कामयाब नहीं हो सकते, है ना जी। जो ये पाँव के छाले होते हैं ना, ये अमृत के प्याले होते हैं। ये जो हाथों में छाले होते हैं किस्मत वालों के होते हैं, हर किसी के नहीं। हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। जो अगली कहानी है, शार्पनिंग द एक्स, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक आदमी 5 साल से लगातार पेड़ काटा करता था और उसको 5 साल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिला। अचानक उन्हीं के ग्रुप में एक आदमी आया और उसको 6 महीने बाद मालिक ने इंक्रीमेंट दे दिया। तो जो 5 साल से लगातार पेड़ काट रहा था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला कि अरे मेरे को तो कभी इंक्रीमेंट नहीं मिला। और उसने अपने मालिक से जाके पूछा कि ये लड़का जो नया आया है 6 महीने बाद आप इसको इंक्रीमेंट दे रहे हो, किस लिए। तो बोलते हैं हम तो परफॉर्मेंस बेस्ड देखते हैं, इसने ये तुमसे ज्यादा पेड़ काटता है उसी टाइम में, इसलिए मैं इसको इसको ये इंक्रीमेंट मिला स्पेशल। तो उस आदमी ने बड़ी कोशिश की पर उसका मुकाबला नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में सोचा जाके मैं उसी से पूछता हूँ कि ये कैसे करता है, ये मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। तो उसने जाकर के उस इंसान से पूछा कि तुम मुझसे ज्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो, तुम मुझसे उम्र में भी छोटे हो, तजर्बे में भी छोटे हो। तो उस लड़के ने, आदमी ने एक छोटा सा सवाल किया। बोला कि सर आप अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको कितने समय बाद शार्प करते हैं। तो बोला 6 महीने बाद। वो लड़का बोला मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट करता हूँ और अपनी आरी को शार्प करता हूँ। इसलिए अपने जो अच्छी किताबें पढ़िए, अपने आप को संभालिए। अपने पे सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने पे की गई इन्वेस्टमेंट होती है, अपने पे इन्वेस्ट करना सीखिए।
अगली कहानी द मैजिकल गिटार, माय फेवरेट स्टोरी। हर टीचर को आनी चाहिए, मैं मानता हूँ हर प्रिंसिपल को आनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि ये कल आपकी असेंबली का एक हिस्सा हो। एक ऑक्शन चल रही थी, एक जगह ऑक्शन चल रही थी, वहां पर बहुत चीजें, एक बड़ी शानदार कोठी कोठी बिकी। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ की कोठी बिकी। उसके बाद कार की बार आई, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, सामान बिकता चला जा रहा था। लास्ट में वहां पर एक गिटार पड़ा था, मेरे जैसा गिटार, जो किसी काम का नहीं था। अब आलम यह था कि ऑक्शन वाले ने बोला 10,000, किसी ने नहीं लिया। उसने बोला 7,000, किसी ने नहीं लिया। उसने बोला 5,000, किसी ने नहीं लिया। तो वो फेंकने लगा। तो वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था, उसने बोला सर मैं आई सीधा गिटार, मैं गिटार देख सकता हूँ। वो गिटार को लेकर के साइड में चला गया। थोड़ी देर में वो गिटार बजाता हुआ आया, तो वो इतना अच्छा बजा रहा था कि वहां बैठी ऑडियंस रोने लगी। तब उस आदमी ने दोबारा बोली लगाई, उसने बोला 2,000। एक आदमी सीधा बोला 10,000, 15,000, 50,000। बिलीव में ये रिकॉर्ड में है, वो गिटार 5 लाख का भी। नीचे ऑथर लिखता है कि ये गिटार की क्या खासियत है। हम सब, हमारे स्कूल का हर बच्चा उस गिटार की तरह है जिसकी केवल एक तार ढीली है। जिस दिन टीचर ने उस तार को सही कर दिया, आप समझिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपका वो दोस्त जो डिप्रेशन में है, उसकी वो तार कसिए। आपका आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, जिसको जरूरत है, उसकी वो तार कस दीजिए, उसकी जिंदगी बदल सकती है। नेक्स्ट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, माय फेवरेट वन। ये स्वामी विवेकानंद के साथ भी है, सक्रोट्स के साथ भी है, दो जगह इनका चर्चा है ये कहानी का। एक बार कोई स्वामी विवेकानंद के पास गया और बोला महाराज मुझे कामयाबी का मंत्र बताइए, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद बोले रहने दे, तुझसे नहीं होगा। वो आदमी माना नहीं, बोला नहीं महाराज मुझे बताइए स्वामी जी, कामयाबी का क्या मंत्र होता है। तो स्वामी जी बोले ठीक है, ऐसा कर, कल मुझे समुद्र के किनारे मिलना। कन्याकुमारी के आसपास की बात है। तो वो समुद्र के किनारे जब स्वामी जी को सुबह मिला, तो स्वामी जी ने उसको बोला बोला ऐसा कर, मेरे पीछे पीछे आओ। समुद्र, स्वामी जी पानी की तरफ बढ़े, पानी घुटनों तक आया, फिर कमर तक आया, थोड़ा और ऊपर आया। वो आदमी घबरा गया। जब पानी मुंह तक आया तो स्वामी जी ने छलांग मारी और उसकी पीठ पर बैठ गया। वो आदमी पानी के अंदर हवा हवा करते, उसने जोर से धक्का दिया, स्वामी जी को बाहर फेंका और किनारे की तरफ भागा। स्वामी जी उसके पीछे पीछे थे। स्वामी जी ने उसको बोला रुक, अरे रुक, तुझे कामयाबी का मंत्र तो बता दूं। वो आदमी बोला स्वामी जी, स्वामी जी ने मुझे कामयाबी का मंत्र तो बता दूं। उस आदमी ने बोला कि स्वामी जी आप मुझे कामयाबी का मंत्र बताने के लिए लाए हैं या मेरी जान लेने के लिए लाए हैं। स्वामी जी बोले जब तू पानी के अंदर डूबा उधर तू क्या कर रहा था। क्या था, मुझे एक ही था, हवा हवा हवा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोलते जिस दिन तुझे गोल्स इतने क्लियर हो जाएंगे, तुझे ये लगे कि अगर मैं ये, मेरे गोल्स, मेरे ये सपने पूरे नहीं हुए तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, उस दिन तू कामयाब हो जाए। How important your goals are for you, that decides whether your dreams, your goals will come true or not. Next is the Disneyland. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, the power of vision. What often people say, what is vision? Vision is the power to see which other people cannot see. वो चीजें आप जानते हैं, केवल आप देख सकते हैं, कोई और नहीं। मत पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। तो स्वामी, ये जो डिज्नीलैंड का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। डिज्नीलैंड को बनने में 10-12 साल लगे थे। तो डिज्नीलैंड जिस आदमी ने बनानी शुरू की थी, 2-4 साल बाद उसकी डेथ हो गई। जब डिज्नीलैंड बन के तैयार हुआ तो वहां बहुत बड़ी गैदरिंग थी। गैदरिंग में बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो जो जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया था उनके बेटे भी वहां पर थे। तो उसने, एक आदमी ने उनसे कहा, उदास खड़ा था, तो उनके बेटे ने बोला आप उदास क्यों खड़े हैं। उस आदमी ने बोला मैं उदास इसलिए खड़ा हूं कि तुम्हारे डैडी ने डिज्नीलैंड को बनाया, पर वो इसको देख नहीं सके, मुझे इसी बात का दुख है। वो लड़का बोला आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप डिज्नीलैंड आज देख रहे हैं, मेरे पापा ने इसको 10 साल पहले देखा। ओके, दैट इज द पावर ऑफ विजन। ओके, सो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि युद्ध नहीं जिनकी किस्मत में वो तो बड़े अभागे होंगे। संघर्ष, युद्ध, युद्ध नहीं जिनकी किस्मत में वो तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो रण से भागे होंगे। तो स्ट्रगल ही आपको जिंदगी में कामयाब बना दिया। जो लास्ट स्टोरी है, द लेडी विद रेड रोज, ये बड़ी ही शानदार, मेरी पसंद की कहानियों में से है। एक आदमी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, इतना निराश था कि उसने सोचा कि मैं सुसाइड करूं।
जिंदगी में क्या रखा है। वो ये सोच करके घर से निकला और अचानक उसको पता चला कि वॉर शुरू हो गई है, तो उसने सोचा कि जब मरना ही है तो क्यों ना देश के लिए शहीद हुआ जाए। वो तुरंत जाके आर्मी में ज्वाइन कर गया। इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट होने के कारण उसको कमीशन मिल गया, अफसर था। युद्ध के लिए जब जाने लगा, पहली बार पहले दिन निकला तो रास्ते में उसको एक डायरी मिली। डायरी में बड़े शानदार कोट्स लिखे हुए थे, जैसे आज आप सुन रहे हैं। और वो उन कोट्स को सुनकर के बड़ा ज्यादा इंप्रेस हुआ, उसको लगा कि यार जीना चाहिए। वो लड़ाई करीब 3-4 महीने चली, वो उसमें लगा रहा। और उसके बाद जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसने देखा कि डायरी के लास्ट में लड़की का नाम लिखा है और उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। हिम्मत करके उसने फोन किया उस लड़की को और कहा कि मैडम, आपकी डायरी ने मेरी जान बचाई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की हैरान रह गई। लड़की बोलती, तुमने मुझे देखा है? कहता, मैंने आपको नहीं देखा। कहती, लड़की बोली, हो सकती है मैं बहुत मोटी हूँ, हो सकता है मेरे मुंह पे चिकन पॉक्स के दाग हूँ, हो सकता है मैं सांवली हूँ, क्या तुम फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? कहता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने शादी आपसे ही करनी, मैं तो मरने वाला था, मेरी जिंदगी आपकी देन है, मैं आपसे शादी करूँ। लड़की बोली, ठीक है, मैं तो ये तुम्हें मुंबई के रेलवे स्टेशन पे मिलूंगी, रेड कलर का मैंने ड्रेस पहनी होगी और मेरे हाथ में एक रोज होगा। लड़का बोला, अच्छा। लड़का जब ट्रेन से उतरा तो जब ट्रेन से उसने नीचे पांव रखा बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो उसके सामने से एक व्हाइट उसमें गाउन में एक बड़ी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत कि शायद ऐश्वर्या राय भी उसके सामने पी ले जाए। शी वॉज वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। एक बार तो उस आदमी का मन डोल गया कि मैंने तो उस रेड वाली से शादी करने की बात करके गलती की। कमीशन अफसर हूँ, हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये मुझसे शादी कर लेती। फिर उसको याद आया कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, इस लड़की ने मेरी हिम्मत करके उसने दूर देखा, एक लड़की रेड ड्रेस में खड़ी है। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था वो डर रहा था, क्योंकि वो काफी मोटी थी। पास जाकर के देखा तो सच में वो बिल्कुल सांवली, चेहरे पे उसके चिकन पॉक्स के निशान थे। लड़के ने फिर भी हिम्मत करके कहा कि आई एम डेविड, इसने आपको फोन किया था, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो उस लड़की ने फूल देते हुए उसको कहा, ओ यू आर डेविड? ही सेड यस, सो इट्स प्रपोजल फॉर मैरिज। उसने बोला, हाँ। तो वो लड़की बोली, ये फूल आपके लिए है, पर मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे आपने मिला। बोला कि क्यों? बोला, वो लड़की, वो जो व्हाइट गाउन में अभी गई है ना यहाँ से, वो लड़की है। उसने ये कहा था कि अगर वो आर्मी, वो बंदा तेरे पास आकर के तो ये शादी के लिए प्रपोज करे, तो उसको बोलना, ताज में होटल सीट टेबल नंबर 35 पे मैं बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ। दोस्तों याद रखो, हर लड़की जो आप ऐसे जिंदगी में जो समस्याएं हैं ना, जो ये डार्क आपको कंप्लेक्शन वाली लड़की लगती है, जो बड़ी मुश्किलें लगती हैं, यही आपको रास्ता दिखाएंगे उस खूबसूरत लड़की का। यही आपको वहां तक, जब तक अंधेरे से नहीं निकलोगे ना, तब तक आप उजाले की कीमत नहीं पहचान सकते। इसलिए जरूरी है, स्ट्रगल करो, गिरो, बार बार गिरो और आगे बढ़ो। आगे चलिए। बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई बिलीव ये ये थॉट सही कर लीजिए। प्रैक्टिस नेवर मेक्स यू परफेक्ट, इट इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्योंकि अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रिजल्ट रॉन्ग ही आएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तभी पत्थर उछालो, प्रैक्टिस करो, लगातार करो, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। मेक आई कांटेक्ट, लोगों की आंखों में आंखें डाल करके देखने की आदत डालो। ये सारे मंत्र बच्चों पे भी अप्लाई होते हैं, याद रखिएगा। आपने नोट किया है कि जो बच्चे आपसे आई कांटेक्ट करते हैं वो फास्ट लर्न करते हैं। जो बच्चे आई कांटेक्ट करते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और कई बच्चे इंटेलिजेंट होकर के भी नहीं करते हैं, तो उनको सिखाओ कि बेटे आई कांटेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। वॉक 25% फास्टर। हमेशा याद रखो कि आपने दूसरों से आगे चलना है, तभी आप कामयाब हैं। अगर आप दूसरों से आगे नहीं चल रहे हैं तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। स्पीक अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को सिखाइए कि सवाल करना, पूछना बहुत जरूरी है। और जानते हैं आप कि जब तक हम पूछना नहीं सीखते हैं तब तक हम डर में रहते हैं। मेरी एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरी फेवरेट कोट है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर 5 मिनट्स, इफ यू डू नॉट यू रिमेन फॉर एवर। अगर आप सवाल करते हैं तो आप केवल 5 मिनट के मूर्ख हैं। बच्चे, क्लास के बच्चे या आपके दोस्त आप पर हंस सकते हैं, पर कितनी देर के लिए? केवल 5 मिनट के लिए। और अगर नहीं पूछते हैं तो सारी उम्र आप वैसे ही वैसे रहते हैं। मैं स्पीकअप से जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा जो मेरे साथ बीता, और मेरे
बहुत जगह ये शेयर किया है कि क्या हुआ। मैं आज से करीब साल भर पहले की बात है, मैं मार्केट में खड़ा था शाम के टाइम। एक मीन्स बड़ी ही क्यूट बच्ची मेरे सामने आके खड़ी हो गई, कहती गुड इवनिंग सर। आई सेड गुड इवनिंग। कहती पहचाना सर आपने? अब 6,500 बच्चे हैं, मैंने क्या पहचानना। मैंने कहा हाँ पहचान लिया, आप दशमेश से ही हो ना? बोलती हाँ सर दशमेश से। बड़ी खुश हुई। तो साथ में उसने मुझे बोला कि सर, मैंने कहा बेटे क्या कर रही हो? बोलती मैंने +2 कॉमर्स कर लिया। शी गॉट 93%। कहती मैं कनाडा जा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि बेटे स्पेशली मुझसे मिलने आने का कारण बताओ। तो बताने लगी कि सर आप 2015-16 में यहाँ पे थे, तब मैं 7th क्लास में थी, 7th या 8th में थी। बोलती मैं एवरेज स्टूडेंट थी। मैंने कहा अच्छा। कहती आपने मेरी क्लास में एक लाइन बोली थी। मैंने कहा कौन सी? तो बोलती सर आपने कहा था इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर 5 मिनट्स, इफ यू डू नॉट यू रिमेन फॉर एवर। कहती वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कहती उस दिन के बाद मैंने किसी टीचर को क्लास से नहीं जाने दिया जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। कहती मैंने 10th में भी टॉप किया और +2 में भी टॉप 10 में। ओके। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो बोलें। स्माइल बिग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब टाइम हो, सही टाइम हो, दोस्तों के साथ हो, हंस भी लिया करो। हंसना जरूरी है, ये दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है। गो एक्स्ट्रा माइल। आज के जमाने में 100% देने वाले बहुत हैं। याद रखिए, दफ्तर का टाइम केवल 6 घंटे होता है, 8 घंटे होता है। जब तक आप 10 घंटे नहीं देंगे, आप ग्रेट एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकते। सेम वे, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट, लुक स्मार्ट, ड्रेस वेल, पॉलिश योर शूज योरसेल्फ। याद रखिए, आपके कपड़े महंगे नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, आयरन होने चाहिए, और आपके शूज जरूर पॉलिश होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ अपने साथ बीता हुआ एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैंने कल ही बच्चों को सुनाया था। जब हम यूपी से पंजाब में आए, तो उस टाइम मैं दशमेश स्कूल में 2-3 महीने एज अ टीचर मैंने काम किया था। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बन के मुक्तसर चला गया था। तो मैंने यहाँ पर 2-3 महीने ही काम किया था। उसके बाद 2-2.5 साल बाद मैं मार्केट में यहाँ फरीदकोट में किसी के घर गया। जब मैं उनके घर गया तो एक बच्चे ने दरवाजा खोला और बोला कि पापा, मिस्टर देवगन इज एट द डोर। मैं बड़ा हैरान रह गया कि इसको कैसे पता चला कि मेरा नाम। मैं उसकी फादर से बात हुई, काम खत्म हो गया, मैं वापस आने लगा। मैंने कहा उससे कि मैंने कहा बेटे आपको मेरा नाम कैसे याद है? तो बोलते सर आपने दशमेश में काम किया। मैंने कहा मैंने 2-2.5 महीने काम किया और यहाँ वहां पे 2,000 बच्चा था उस जमाने में, तो कैसे तुम्हें मेरा नाम याद है? तो उसने बोला कि सर हमारे प्रिंसिपल, उस जमाने में प्रिंसिपल सरदार गुरचरण सिंह होते थे। तो कहता है हमारे प्रिंसिपल सर ने स्पीच देते हुए एक बार कहा था कि अगर आज अपना चेहरा शीशे में देखना चाहते हो तो जाके मिस्टर देवगन के शूज में देखो। बिलीव मी, मैं रात को तब तक नहीं सोता हूँ जब तक मेरे शूज पॉलिश ना हो। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इब्राहिम लिंकन हु इज माय रियल हीरो, आई एडमायर इब्राहिम लिंकन एंड स्वामी विवेकानंद एज माय हीरोज। तो इब्राहिम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे ना, तब भी अपने शूज खुद पॉलिश करते थे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को भी सिखाइए ये बात कि शूज खुद पॉलिश करें, कपड़े साफ सुथरे पहन करके आए। महंगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कपड़े महंगे नहीं हम कहें, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। ऑलवेज थिंक दैट योर वर्क इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। याद रखिए, जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप कामयाब नहीं हो सकते। गिव योर सेल्फ अ पेप टॉक एवरी डे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सबको डेली 15 मिनट अपने से बात करनी चाहिए। अगर हम 15 मिनट अपने आप से बात नहीं करते हैं, तो हम एक बेहतरीन इंसान से बात करने का मौका खो देते हैं। ये जरूरी है, पेप टॉक बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक फ्रॉम फ्यूचर। ये थ्योरी है बहुत अच्छी। अगर आपका कोई भी सपना है, बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ, आप अकेले कमरे में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और ये सोचो, ये सोचो कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से बात कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे जवाब अपने आप मिल जाएंगे। इन ऑल द इंपॉर्टेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, याद रखो कि इज दिस द वे एन इंपॉर्टेंट पर्सन थिंक्स लाइक इब्राहिम लिंकन। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बताना चाहूंगा, जो आप सोच सकते हैं। आज आपने मेरे को सुना, मुझे पता आप में से बहुत सारे लोग मेरे फैन हो जाएंगे। याद रखिए, तो मैं एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग भी, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। व्हाइट हाउस में जहां पर प्रेसिडेंट की चेयर लगी है ना, उसके पीछे इब्राहिम लिंकन की फोटो लगी है। किस लिए लगी है मैंने पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। कहते आज भी अमेरिका का प्रेसिडेंट जब कोई डिसीजन नहीं ले पाता, सोचता मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वो ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे बैठ जाता है
और ये सोचता है कि अगर मेरी जगह इब्राहिम लिंकन होते तो क्या डिसीजन लेते, और उसको सही जवाब मिल जाता है। जब भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो तो जो आपका हीरो हो, ये सोचिए कि अगर वो आपकी जगह होता तो वो क्या करता, और आपको हमेशा सही जवाब देता। नेक्स्ट प्लीज। रिमेंबर नेम्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द अपना नाम होता है। आप सोच नहीं सकते हैं, पिछले 20 सालों में शायद 20 बार मैंने अपूर्व शब्द सुना है। जब कोई मुझे अपूर्व कह के बुलाता है ना, मेरे को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि मैंने या तो देवगन सुना है, या सर सुना है, या प्रिंसिपल सर सुना है। जब कोई कहता है ना अपूर्व, तो मुझे ये लगता है कि कोई मेरा अपना आ गया। ओके, सो मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मुझे अपूर्व कह के बुलाता है। एंड दैट इज द रीजन, लर्न टू रिमेम्बर नेम्स। जब मैं कोटकपुरा में था, मेरे पास 2500 बच्चे थे, सारे पेरेंट्स जानते हैं। मैं एक एक बच्चे का नाम, उसकी फैमिली हिस्ट्री पर्सनली जानता था। यहाँ 6500 बच्चे हैं, थोड़ी मुश्किल होती है। देन टेक सजेशन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। हमेशा जब भी राय लेनी हो, सही इंसान से लीजिए। हमेशा याद रखिए कि आपके डिसीजंस कई लोगों को इफेक्ट करते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लीजिए। ठीक है, जिम्मेदारी वही लेता है जो जिम्मेदारी लेने लायक होता है, और याद रखिए परमात्मा भी जिम्मेदारी उसी को देता है जो उठाने लायक होता है। डोंट वेट फॉर द राइट मूवमेंट, मेक एवरी मूवमेंट राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा है, स्टीव जॉब्स, इब्राहिम लिंकन, इवन बिल क्लिंटन, इन सब ने एक बात बहुत अच्छी लिखी थी। इन्होंने ये कहा था कि अगर हम सही वक्त का इंतजार करते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। मैं अभी बिल क्लिंटन का पढ़ रहा था कि जिस क्लास में मैं फेल हुआ, जो टॉपर्स ने मेरी क्लास के, वो सब आज मेरे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने राइट मूवमेंट का इंतजार नहीं किया। जो मुझे मौका मिला, मैंने उसको इस्तेमाल किया और आगे बढ़ा। डोंट ब्लेम योर लक, बिकॉज द हार्डर यू वर्क द लकीर यू गेट। अब याद रखिए, हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, मैंने आपको बताया, मेरी फेवरेट लाइन में से एक है। वैसे ही वक्त को दोष मत दीजिए। किसी ने बड़ा अच्छा, मेरी एक बड़ी लाइनें सुनी थी, बड़ी अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना। आमतौर पर लोग कहते हैं यार तू क्या करेगा, तू तो वहां से आया। मुझे पता है, जब हम पंजाब में आए थे नए नए, अपने ही रिश्तेदारों के वो टॉन्ट्स थे, आप सोच नहीं सकते। कोई और होता तो भाग जाता। पर हमारे फादर बड़ी अच्छी बात कहते थे कि ये कहा करो, तुम मेरे बारे में कोई राय कायम मत करना, हमारा वक्त बदलेगा, तुम्हारी राय बदलेगी। याद रखिए, वक्त बदलता है अगर आप कमिटेड है। राइट योर गोल्स, बिकॉज गोल्स वंस रिटन बिकम कमिटमेंट। जैसे मैंने भी पहले भी कहा, अपने लक्ष्य को लिखना सीखिए। जब आप अपने लक्ष्य लिखना सीख जाते हैं, तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये पहले बता चुका हूं कि इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यू आर अ फूल फॉर 5 मिनट्स, इफ यू डू नॉट यू रिमेन फॉर एवर। यहाँ पर मैं फिर आपको एक कोट सुनाना चाहूंगा। एक दिन सूरज से मैंने बस जरा सा यूं कहा। हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि एक दिन सूरज से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में क्यों कर अंधेरा हो रहा। तमतमा के सूर्य बोला, मैं अकेला क्या करूं, मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घंघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ठीक है जी, लड़ो। इंतजार मत करो सही वक्त का, वो कभी नहीं आएगा। दोस्त का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि ये जिंदगी आपका संघर्ष है। कामयाबी नाकामयाबी, आज तक आपने देखा है कि टॉप पर कभी दो बंदे इकट्ठे पहुंचते हो? कभी नहीं पहुंचते। वह जेता, जो टॉपर्स है वो अकेले चलते हैं। अगली लाइन ही है, वॉक अलोन नेवर वेट फॉर पीपल। रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा फेमस गाना है, एकला चलो रे। अकेला चलने की हिम्मत रखो। अगर आप अकेला चल सकते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी जिद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे अंदर ना सही, तेरे अंदर ही सही, कहीं ना कहीं तो एक आग जलनी चाहिए। वो आग जलाइए, भड़कती रहनी चाहिए। अगर सोच ही लिया ऊंची उड़ान का, तब क्या कद देखना आसमान का। ओके, अगर नापना चाहते हो मेरी उड़ान को, जाओ थोड़ा और ऊंचा कर दो आसमान को। आसमान कम है मेरी उड़ान को नापने के लिए, इसको और ऊपर। देन अगेन आई से, यू मस्ट रीड गुड बुक्स। द मोर यू रीड द बेटर यू लीड। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। याद रखिए,
अपने पाँव का कांटा खुद ही निकालना पड़ता है। और उसमें ये जो किताबें हैं, जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये मैंने 2,500 लोगों को पढ़ाई है, 2,500 से ऊपर। और बिलीव मी, जिस वक्त मैं बिल्कुल डिप्रेशन में था, आई यूज टू थिंक ऑफ कमिटिंग सुसाइड, उस टाइम किसी ने मुझे ये किताब दी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और उसने मेरी जिंदगी में इतने बदलाव लाए, आप अंदाजा नहीं ला सकते। क्योंकि फिर मैं ये कहूंगा, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। याद रखिए, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। क्योंकि हम कभी हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। ठीक है जी। सेकंड बुक, यू कैन विन, माय फेवरेट वन, हाउ टू विन इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल, द अल्केमिस्ट, द मिरेकल ऑफ कमिटमेंट। दिस बुक इज रिटन बाय मी। ये मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन, शॉप क्लूज, सब पे है। एज अ मैन थिंकeth, वेरी फेमस बुक, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, आप सब जानते हैं। 1 मिनट मैनेजर, ये सब भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बड़ी चर्चा में रही हुई किताबें हैं। इनको पढ़िए, इनको डिस्कस कीजिए, और फिर फक्र से कहिए, मैं जिस राह से निकलूंगा मैयार बदल जाएगा। मैयार मीन्स पैमाना, लोगों को नापने का पैमाना बदल जाएगा। मैं जिस राह से निकलूंगा मैयार बदल जाएगा। मैं वो सिक्का हूं जो हर दौर में चल जाएगा। वो सिक्का बनिए जो हर दौर में चल, है जी। देन दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। 1968 में ये एक रिसर्च की थी, दो फ्रेंड्स ने, ये किसी स्कूल में गए थे, और वहां पर जाकर के, वो स्कूल बड़ा एवरेज था, वहां पे एवरेज बच्चे पढ़ा करते थे, कोई इंटेलिजेंट नहीं था। तो इन्होंने एक रिसर्च की, वहां जाकर के टीचर्स को इकट्ठा किया और बोला कि सारे बच्चों को, जो वहां पर बैठे 50-60 बच्चे थे, बोले हम इन बच्चों के ऊपर एक इनका आईक्यू टेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने आईक्यू टेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने 20% बच्चों का नाम लिया, और बोले कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे आपके बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। और लोगों ने उस पर ध्यान दिया, उन बच्चों ने, तो लगा कि हाँ, हमारे अंदर कुछ खास है, टीचरों को भी लगा। और जब बोर्ड के एग्जाम आए तो वो 20% बच्चे मेरिट में थे। टीचर हैरान थे कि हमारे ये बच्चे जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, ये मेरिट में आ गए। वो एक्सपर्ट्स के पास गए और उनके पास जाकर के बोले कि सर, ये बच्चे मेरिट में आ गए, बताइए आपने क्या किया था। एक्सपर्ट्स बोले, मैं हम आपको बताना चाहते हैं, हमने तो आंसर शीट ही चेक नहीं की थी। कैन यू थिंक ऑफ, उन्होंने वो आंसर शीट ही चेक नहीं की थी। कहते हमने तो केवल आपको 20% बच्चों के नाम दिए थे, और आपने उन पर भरोसा दिखाया, उन बच्चों ने खुद पे भरोसा किया, और वो मेरिट पे है। देखिए, जो शब्दों की ताकत है ना, वो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगा। पता नहीं आप लोगों ने द डॉक्टर्स स्टोरी पढ़ी है, द डॉक्टर्स वर्ड स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी। अगर नहीं सुनी है तो आप सुनिए और इसको अमल कीजिएगा कि आपके शब्दों का क्या असर होता है। एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर था किसी शहर में। उस डॉक्टर की एक कमी थी, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अगर कोई आदमी 2 दिन बाद मरने वाला है तो मुंह पे बोल देता था, भाई तू तो 2 दिन का मेहमान है, तू 6 महीने का मेहमान है, तू 3 महीने का है। ठीक होने वाला है तो वो भी बता देता था। पर वो कॉस्टली बहुत था। ही वॉज द बेस्ट डॉक्टर इन द एरिया। एक दिन वो अपने क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो उसने देखा उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड का बच्चा सामने से मेडिसिन पीता है। उसको बड़ी हैरानी हुई, उसने अपने अटेंडेंट को बोला, जाके बुला के लेकर आओ उसको। तो जब वो बुला के लेकर आया तो उसने ये पूछा, बोला कि भाई बेटा क्या बात होगी। कहता, अंकल पापा को हार्ट अटैक आया था, उनको दोबारा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए दवाई लेने आया हूँ। तो वो आदमी हार्ट का स्पेशलिस्ट था, उसने बोला, बेवकूफ, मेरे पास क्यों नहीं आया, तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त है। तो वो बोला कि अंकल आप बहुत कॉस्टली हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया, उसने फटाफट पेशेंट खत्म किए और अपने दोस्त के घर चला गया। उसने जाके देखा, उसकी दोस्त की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल थी। उसने अपने दोस्त की वाइफ को बोला कि तू दूसरे घर में चली जा बच्चों को ले। वो रोई जा रही थी। उसने बेटे को बोला, तू दवाइयां लेकर आ, अपने अटेंडेंट के साथ उसको अटेंड करने लगा। तो वो उसका दोस्त बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा था, मैं बचूंगा कि नहीं, मैं बचूंगा कि नहीं, मैं बचूंगा कि नहीं, मैं बचूंगा कि नहीं। वो जवाब, कुछ नहीं होता तेरे को, क्या बात है, क्या बात है, करता रहा। रात को करीब 8:30 बजे उसने पूछा कि तू बार बार ये सवाल क्यों कर रहा है। कहता है कि यार प्रॉब्लम ये है कि मैंने प्रॉपर्टी अपनी पे साइन नहीं की है। कहता है अगर तू बता दे मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है तू झूठ तो बोलता नहीं है। अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं प्रॉपर्टी पे साइन कर देता हूँ, जिससे कम से कम मेरे बच्चों के हाथ से हिस्से में प्रॉपर्टी आ जाएगी, नहीं तो मेरे भाई इसको खा जाएंगे, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। और उस डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बोला, नहीं भाई तुझे कुछ नहीं होता, 10 साल तक तू बैठा है। फिर वो बाहर निकला, अपने अटेंडेंट को साथ ले गया। अटेंडेंट ने बोला, सर क्या बात है। कहता कि देख, रात को 1 बजे इसको सीवियर अटैक आने वाला है, इतना दर्द होगा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा करना है, इसको इंजेक्शन दे देना, आसानी से मर जाए। इसको नींद का इंजेक्शन दे देना जिससे ये आराम से मर जाए, इसको दर्द नहीं होगा।
तो उस दोस्त ने बोला आप खुद कर लो। कहता यार मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसको मरता नहीं देख सकता। और वो रोता हुआ चला गया डॉक्टर। अगले दिन सुबह डॉक्टर तैयार होकर के अपने क्लिनिक जाने लगा, तो सोचा पहले अपने दोस्त को देख। वो अपने दोस्त के घर गया तो उसका दोस्त बाहर घूम रहा था। तो उसने बोला कि ओए कैसा है? कहता मुझे क्या होना, उल्लू के पट्टे, तूने तो कहा था 10 साल तक जिंदा हूं। क्योंकि उसके दोस्त का भरोसा था कि मेरा दोस्त झूठ नहीं बोलता है। दिस इज द पावर ऑफ अ टीचर्स वर्ड। आपका एक शब्द बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। मैंने डॉक्टर बी सिंह और मोनिका मैम से सुनाया था, ये लोग बड़े इमोशनल हो गए। बात कोटकपुरे की है। वहां पर एक लड़का था कृष्णा। जब वो 9th क्लास से 10th में गया तो एक कंसर्न आया। कंसर्न ऐसा आया कि हमें पूरे 160 बच्चों में से केवल एक बच्चे का सेक्शन बदलना पड़ा। जब उस बच्चे का सेक्शन बदला गया, उस सेक्शन से ये हुआ कि वो बच्चा रिवोल्ट कर गया। वो बच्चा डेली जानबूझ के 5 मिनट लेट आता। उसने 5 मिनट लेट आना और मीन्स टीचरों को परेशान करना, किसी की नहीं सुनता था। तो क्या हुआ, टाइम उसकी मम्मी हर सैटरडे को आती, टीचर उनको बोलते, आपस उसकी माँ रोती रहती थी। बेटा बोलता था आप मेरी माँ को रुलाते हो। माँ कहती थी टीचर सही है बेवकूफ, तेरी गलती है। और उस बच्चे ने 80 में से कभी भी 8 9 ऐसे ही नंबर लेने। दिसंबर के महीने में 10th सीबीएसई में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स होता है। तो ना उसमें साइन करवाने के लिए फर्स्ट टाइम उसके फादर आए। जब फादर आए तो मैंने उनको बुलाया और मैंने कहा कि आप हमारे लेटर्स नहीं पढ़ते, हम इतने मैसेज डालते हैं। पहली बार मैंने लाइफ में ये बात बोली। मैंने कहा आपके बच्चे की जो आदतें हैं ये पास नहीं। तो उसके फादर उठ के चले गए। उन्होंने मुझे घर से फोन किया, कहते हैं कि सर आपकी कोई चिट्ठी हमें नहीं मिली। मैंने कहा इसकी डायरी चेक करो। डायरी में पेस्ट थी। कहते सर डायरी तो पढ़ ली, पर मुझे एक चीज का गम है। मैंने कहा क्या? कहते आपने बोला मेरा बेटा पास नहीं होगा, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी। मैंने कहा अगर आपको नींद नहीं आएगी तो मुझे भी नहीं आएगी। आप तुरंत स्कूल आ जाओ, बेटे को साथ लेके आना। 24 दिसंबर की बात है, अगले दिन से क्रिसमस की छुट्टियां थी। पूरा बाहर फॉग छाया हुआ और मेरी ड्राइविंग बहुत पुअर है, सब जानते हैं। मैंने शायद 45 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीखा था। तो वो आए तो बच्चा बाहर खड़ा था। मैंने उसके डैडी से एक ही क्वेश्चन किया। मैंने कहा आप लड़ने आए हैं या बच्चे को बचाना है? कहते सर हमारे बच्चे को बचा लो। मैंने बच्चे को अंदर बुलाया और बच्चे से ये कहा कि बेटे आप, लड़का मुकरी जा रहा था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, खाम खा मेरे पीछे पड़े हैं, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। ये कई बार बार एक ही बात कही जा रहा है। तो मैंने उस लड़के से एक ही बात कही। मैंने कहा कि बेटे बिकॉज ऑफ अ गर्ल यू आर स्पॉइलिंग योर कैरियर। कह रहे सर आपको पता है? मैंने कहा बेटे प्रिंसिपल्स को सब पता होता है, पर आज हद हो गई तो मुझे बोलना पड़ा। वो लड़का रोने लगा, उसने मेरे पाँव छुए, बोला सर मैं आपको कुछ बन के दिखाऊंगा। तो मैंने जब वो निकलने लगे तो मैंने उसके डैडी से एक क्वेश्चन किया, बाई चांस मैंने पूछा है आपका बेटा सुबह उठता कितने बजे है? तो उसके डैडी बोले जब 9 बजे का टाइम होता है 8:30 बजे उठता है, 8 बजे का टाइम होता है 7:30 बजे। सुबह उठ के ब्रुश करके दूध पी के स्कूल आ जाता है, ये इसकी डेली की रूटीन है। उसके पेपर 20 मार्च को शुरू होने थे। 1 जनवरी से लेके 20 मार्च तक रोज सुबह 5 बजे उठ के मैं उस बच्चे को फोन करता था और कहता था कृष्णा पढ़ने बैठ जा। 20-25 दिन बाद उसका फोन आना शुरू हो गया कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, आप सो जाइए। और उस बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स में 83% मार्क्स आए थे। इट इज ऑन पेपर। रिजल्ट निकलने के बाद उस बच्चे ने स्कूल में आके एक स्टेटमेंट दी थी अपनी माँ के सामने। कहता आज के बाद इस दुनिया में या तो मेरे लिए परमात्मा है या मेरा प्रिंसिपल। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स। ये जो मैंने लगाई है स्लाइड, ये अफर्मेशंस के लिए है, इसके आगे अफर्मेशंस है। नेक्स्ट वन। हाँ ये मेरी फेवरेट अफर्मेशन है। मैं ये चाहूंगा कि आप सब इसको जरूर प्रैक्टिस करें और हो सके तो मेरे साथ बोलिएगा, आई एम मोर देन आई अपीयर टू बी, ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट इनसाइड मी, अहम ब्रह्मास्मि। आप इसको जब भी कोई टफ टाइम है, जब भी मैं, ये मेरा मैजिक मंत्र है। मैं कोविड 2 की स्टेज से गुजरा हूं, ऐसा टाइम भी देखा है जब ये लगा था जिंदगी खत्म है। मैं ये रोज सोने से पहले बोलता हूँ। जब भी मेरे को जरा भी हेल्थ कंसर्न होता है या मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, आई एम मोर देन आई अपीयर टू बी, ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड पावर्स ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट इनसाइड मी, अहम ब्रह्मास्मि। मेरे हॉस्टल के बच्चे रोज रात को इसको 5 बार बोलते हैं। अगली स्लाइड।
जो सेकंड अफर्मेशन है ये है, यू कैन अचीव व्हाटसोएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप, नेवर गिव अप, व्हाटसोएवर यू डू इट वेल, ऑलवेज रिमेंबर मिस्टर देवगन लव्स यू अ लॉट एंड आई मीन इट। मेरा नंबर आप सबके पास है 8837697092, 8837697092। मिसेज मोनिका उसमें नीचे बॉक्स में भी डाल दे रही हैं, आप में से किसी को भी कभी कोई जरूरत पड़े, यू आर वेलकम, यू कैन कॉल मी। ओके, सो इस ये मंत्र अगर आप 2 साल तक अपने बच्चे को बुलवा लेते हैं, याद रखिए उसका कोई भी सपना पूरा हो सकता है। आप ये जो लास्ट है ना, ऑलवेज रिमेंबर योर फादर लव्स यू, ये जो ऑलवेज रिमेंबर योर मिस्टर देवगन लव्स यू लॉट, राइट लाइन ये है कि ऑलवेज रिमेंबर योर फादर लव्स यू लॉट, क्योंकि बच्चे आमतौर पे अपने फादर का रोल भूल जाते हैं, इसलिए ये फादर का याद कराइएगा। मैंने तो जो मुझे हॉस्टल के बच्चे ये बोलते थे, मेरे हॉस्टल के 50 बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर अवर प्रिंसिपल लव्स यू लॉट, सो दैट्स द रीजन आई हैव रिटन मिस्टर देवगन। नेक्स्ट वन। जब मैंने इस अफर्मेशन को पहली बार सुना था मैं रो पड़ा था। इसकी एक एक लाइन कमाल की है, जादू है, अगर आप इसको समझ सकें। आई विल रिमेन फोकस्ड ऑन माई गोल्स इवन, आप सोचिए 6,500 बच्चा दशमेश का इकट्ठा बोलता है सुबह ये अफर्मेशन, पूरा स्कूल इकट्ठा बोलता है। आई विल रिमेन फोकस्ड ऑन माई गोल्स इवन आई हैव अ मूवमेंट ऑफ डिफिकल्टी, आई विल नेवर गिव अप, आई नो सक्सेस कम्स विद कंसिस्टेंसी, आई नो आई विल मेक इट, things will get better, no problem can ever stop me, everything I deserve is coming my way, I am aware of my potential, I am unstoppable, I am limitless, I can, I will, I can, I will, I can, I will. Try these mantras, they really work. लास्ट में जिंदगी का सार, वर्क सो हार्ड दैट अ डे कम्स व्हेन यू से आई हैव अ स्टोरी टू टेल एंड योर स्टोरी शुड बी सो इंटरेस्टिंग दैट इज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स दैट पीपल स्टैंड अप एंड लिसन टू इट। याद रखो, जिंदगी में जो गिरा नहीं संभलेगा क्या, वो है ना कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर, सघन वन अंधेरी है मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, अभी बहुत दूर तक चलना है, अभी बहुत दूर तक चलना है। इसको इसी को रहने दीजिए। मैं उसके बाद कुछ और मैं आपको कोड सुना दूंगा, आपको जो पसंद आएंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो देर तक चलेगा। देन ये फिराक गोरखपुरी का नाम पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, उनकी बड़ी शानदार लाइनें हैं। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ओके, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, याद रखिए, युद्ध नहीं जिनकी किस्मत में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या वो रण से भागे होंगे। इसलिए अपने गोल्स खुद डिसाइड कीजिए, जिंदगी आपकी है, मेहनत आपने करना है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तभी है सुराग, उछालो यारो। आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, मेरा फेवरेट शेर है, अभी मैंने सुना कहीं, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछ लेना मेरे घर का पता मिल जाएगा। जो मेरे साथ खड़ा है वो आंधियों में खड़ा होना जानता है। Okay, I am really thankful to all of you for being here, listening to me. मुझे उम्मीद है कि आज जितनी कहानियां मैंने आपको सुनाई उसमें से काफी आपके असेंबली का हिस्सा बनेंगी, काफी थॉट्स ऐसी होंगी जो आपके डायरियों में पहुंचेंगी। और मींस शायद किसी को अगर परमात्मा ने आज के दिन ये मीटिंग रखी है और मिसेस मोनिका ने इतना अच्छे ढंग से आपको इनवाइट किया है, तो मुझे लगता है कि सचमुच में किसी को आज जरूरत थी, कोई ऐसी मछली थी जो पानी के बाहर पड़ी थी और उसको पानी में उस समुद्र में फेंकने वाला कोई चाहिए था। शायद बहाना बना हम पहुंचे बात। मैं सोर्स बना। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिंदगी में इंसान को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे जन्म क्यों दिया, अपना लक्ष्य ढूंढना चाहिए और फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए सब कुछ लगा देना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, sir. It was such a wonderful session.
एक सेकंड के लिए भी ऐसे नहीं लगा बस कुछ मिस नहीं हो जाए, कुछ मिस नहीं हो जाए। दैट वाज 2 बारी मेरे दरवाजे पे लोग आए एंड आई वाज सेइंग ओह आई एम मिसिंग दैट। बट अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। और एक एक कहानी, एक एक लफ्ज आपके मुंह का दिल को उतरता चला गया एंड इट इज अमेजिंग। आई वुड लाइक दोज हु आर विद अस, यू नो, जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था इट वाज अराउंड 29 people with us, 25 are still with us, which is so amazing. Anybody who would like to share what is the learning for today, just if you really, and we really want to acknowledge sir for that, and I want everybody to at least speak one line that what you are taking from this session, because sir has prepared so well and it is just कल रात को ही बात हुई कि मोनिका मैम आज तो डॉक्टर बी संग नहीं है तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा सर आप बताइए। देन ही सेड कि आई हैव मेड दिस। आई सेड वाओ, मतलब अपने आप ही इनिशिएटिव लेके कि he wants to contribute to everybody. So I really, really, really thank him for that, taking that initiative. Anybody who would like to share, please unmute yourself and you can talk. Ma'am, please allow. Good, great evening to everyone. Sincere gratitude and salutation to Apurva sir. Sir has spoken with so much of emphasis, love and affection, as sir has given everything he has. It was outstanding session, spellbound, right? And the stories narrated, they were very close to our hearts. And sir has given summaries of 100 books. Yeah. Right, and the quotations were very appropriate and very much related to 21st century. And sir, and it has happened because no, sir is very good human being, and he Yeah. wants to give to people, he wants to contribute to people, and he is asset to us, asset to our country and humanity. I salute to sir. Sir has given everything, and outstanding. I have no words to speak, and my sincere gratitude to you, Monica ma'am and sir, that such a spellbound, fascinating session was materialized. Thank you very much. Thank you so much. Anybody else? Thank you so much, sir. Anybody? Babita ma'am? यस, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर बहुत अच्छी सर की मैं स्टोरीज ना उस पे पढ़ती रहती हूँ हिंदी विकास मंच पे। आज सुनने का मौका मिला, आज अटेंड करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी प्रेरणात्मक कहानियां थी और मैं अकेली नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्य सुन रहे थे, तो सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Who else? Sadhna ma'am, would you like to? Ma'am, Yes. may I please? Good evening, Apur sir. Good evening, all of you. Really wonderful. This is what my dream comes true. Thank you, Monica. I want to get all the stories in so that we can publish it. We have planning it, but Monica, please share the recording of this session. Public कर दूंगी, ये पूरी recording We public में जाएगी, definitely, don't worry. sir, we are here at the stories which you told. You said that कोई तो एक मछली होगी जिसको जरूरत होगी, and वो मछली मैं ही थी सर। मुझे बहुत जरूरत थी स्टोरीज की, and sir really wonderful sir. You are great. मतलब मैं आप and the stamina सर आपका 2 घंटा आप at a stretch. Sir, my family is here. वो सुन रहे हैं और my daughter said कि भाई look at the strength of the person. मैंने कहा भाई तुमसे बहुत बड़े हैं but experience में भी बड़े हैं, age में भी बड़े हैं, but the energy level is really. Thank you sir, thank you. और एक बार सर फिर से आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपने फिर से सारी यादें ताजा कर दी। जैसे मोनिका मैम ने बोला कि वो 2 दिन हमें कम लग रहे थे सर, हमें और चाहिए, एक बार और इनवाइट करिए सर हमें। मैम, नाइस टू सी यू अगेन हियर। बहुत अच्छा लगा मोनिका, थैंक यू फॉर दिस सेशन।
Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sunita ma'am wanted to say, ma'am, would you like to unmute yourself and you can. Anybody else? Monica, this side Jagminder Singh. Good evening, sir. Good evening. Apurva Yes, is sir. great. Apurva is great, and your area is also very great. I have been part of your means there sometimes, and today Thank you, sir. it's a big motivational. Energy is recharged for the one session at least. Thank Sir, Tomorrow, you tomorrow there is inspire a morning me. assembly. Tomorrow there is morning assembly in my school that I have written two to 3 stories, and I Very got nice. inspiration always. Thank you Thank so you, much, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing that. Anybody else? Come on. Mukesh, sir, Seema, ma'am, Satinder, sir, anybody? Dr. Nirmala. Yeah, good evening. May I, ma'am? May I, please? Yeah, I think so. Mukesh, sir, is speaking. I'll give you the chance. Yeah, next. ma'am can speak first. I'll speak later. No, sir. Please, you continue. Please, sir. Ji, sir. Monica ma'am and Apurv sir and other fellow colleagues Ye- in a way, ye- because we are working in the same profile. And I found Apurv sir the most resilient person I have ever met through online mode. The way he expressed his life experiences really matters a lot, and I have learned many things today, and I am blessed in a way. And Apurv sir, this 2-hour session is not enough. I wish I could attend more sessions with you, and I request Monica ma'am, at least in a month, if once Apurv sir can come Sir, and every deliver week such we are kind of meeting. motivational. You're most welcome Yeah. every Sunday, 11 o'clock. This is the same link. We meet, we discuss, and we actually try to contribute to everyone. You all are most welcome over here. Yeah, thank you, Apurv sir. Thank you, Monica. Thank you, Thank sir. Thank you so much. Yes, ma'am. Ma'am, good evening. Good evening, sir. And good evening, all of you. I mean, this was my first session when I heard sir. And see, saying something is like to putting some drops of water into oceans. And already सब लोग इतना कुछ बोल चुके हैं. But I still would to say it is like भवतः कृपा पात्रोत्समी, which means कि उन्होंने अपना सारा जो पात्र था वो खाली करके हमें दे दिया. So it was mind blowing session, and I would love to join it again and again. And really sir, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कह पाते हैं, because कहना is very easy, but how to कहना is difficult. अभी जो मछली वाली बात करी ना, तो शायद मैं भी एक ही ऐसे ही मछली हूँ, because I also want to learn a lot from you people. And it was a mind-blowing session, informative session with an interesting way. जो हम बार-बार बात करते हैं ना, being a teacher, being an education, we always say experiential learning. So this is the best example of experiential learning. Namo namo, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing. Anybody else? Come on. I would like to also thank sir. Priveda, come. Am I audible, ma'am? Yes, Actually, yes, I'm you are very traveling. much audible. Okay. I am traveling. I'll try to say a few lines. Like, since I'm working with sir from last 2 years, still I learned so many new things. Every day we learn from sir. Thank you so much, sir. Really thankful to have such a great mentor with me. Thank you, sir. God bless you. God bless you, my dear. God bless you. Great. Thank you, Priveda. Who else would like to contribute? Rajesh sir, Sunita ma'am, Seema ma'am. You raised your hand, I believe. I saw that. Anybody else? Veena ma'am, Harsimrat Jeet, तो हमारे दशमेश के टीचर्स हैं. Why don't you speak up? Mehak, where is Mehak? Yes, Mehak, come on. I'm adding you. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल. सर Yes. आज मैंने आपको देखा था, शायद आपको ही देखा था.
आज आप पोटेंशिया एकेडमी आए थे ना हाँ बेटे, हाँ हाँ हाँ। सर? जब आप अंदर एंटर हुए थे तब आपने कहा था ना ये बच्चे किसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। सर वहां पर मैं भी थी। Okay, okay, okay. God bless you, my dear. And your need is थैंक यू, cleared. थैंक यू सो मच सर। God सर bless you, ये my dear. हाँ। सर ये लिंक मुझे नवीन सर ने भेजा, मुझे लगा कोई और होगा, तो मैंने जब ओपन किया तो मैंने सोचा कि मैंने आपको कहीं देखा है। तो Okay, okay, okay. सर ने जब बोला कि हमारे स्कूल में नॉर्मली 500-600 बच्चे होते हैं और इनके स्कूल में 6000 बच्चे हैं, जब आपने अपनी स्पीच में बोला ना मेरे स्कूल में 6000 बच्चे हैं, तो मुझे लगा कि ये तो वही है जिन्हें मैंने देखा था। चलो God कंफर्म bless you, हो my गया। dear. गॉड ब्लेस यू महक। Monica ma'am, I would love to join sir's school. गुड। Always There welcome, bete. Always welcome. are sir, नहीं personally I'll come and visit to your school, sir. You are welcome, You're most bete. welcome मैम, you're most एक- welcome। एक- सर हमेशा बेटे, always दोनों हाथों से बुलाते हैं। He always call or you know the kind of hospitality that he has shown to us, you know, मतलब हमें पलकों पे बिठा के रखा जब हम वहां पे गए थे। It was such an नहीं बट amazing मैम thing। ये आपका भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये ऐसे टॉक्स बहुत बहुत ज्यादा बढ़ने चाहिए। बिकॉज जब हम पेयर लर्निंग हम बच्चों को सिखा रहे हैं, यू नो, पेयर लर्निंग और व्हाट वी एल्स वी आर डूइंग, मतलब पता नहीं, दिस इज माय पर्सनल, मे बी बिकॉज ऑफ द यंग एज आई ऑलवेज फील एज अ प्रिंसिपल, यू नो, सीनियर प्रिंसिपल्स दे डोंट यू नो एक्सेप्ट अस वेरी इन कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है बट लेट मी टेल यू, जब भी हमारा संडे को सेशन होता है तो दशमेश सर, see the best part of him is that he wants to give everything what he has to everyone, and हमारा डॉक्टर बी सिंह सर, साधना मैम, when we are a complete team, अभी यहाँ पे भी टीचर्स, दशमेश के टीचर्स बैठे हुए हैं, but the way we discuss, the way we go beyond the limits, that is what, और हमारे मन में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई छुपा के रखना नहीं, we want to give and give and give and give so that you all can take the experience and you can implement it। मोनिका, बहुत अच्छी लाइनें हैं कि जहां भी मैं जाऊंगा मैं रोशनी फैलाऊंगा, चिरागों का कभी कोई अपना मकान नहीं होता। Yeah, क्या absolutely। बात है सर, क्या बात है। कह तो रही ठीक है हूँ ना? बहुत ही वंडरफुल सेशन था। तभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ बूंदे हम, मतलब कुछ बाल्टियां हम भी उस समंदर में से उठा लें। और सर आप तो खैर गुरु हैं, मैं लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी और वो मुझे शायद आपकी पर्सनालिटी में लगा भी, कि समंदर की एक खासियत होती है कि हर लहरे को वो बहुत संभाल के रखता है, फिर स्वतंत्रता दे देता है उन लहरों को जाने की, और जब वो भूली भटकी फिर कहीं बिछड़ के अलग हो जाती हैं, फिर समेट लेता है उन्हें खुद भी। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत ज्यादा। इट वाज Thank you so इंटरेस्टिंग एंड much। इंफॉर्मेटिव सेशन सर। Thank थैंक you, यू Thank you, dear. मैम। ma'am। Thank you so much। Anybody else? बेटे, जैसे अभी आपने कहा ना कि कई प्रिंसिपल्स, आप छोटे प्रिंसिपल्स को, न्यू प्रिंसिपल्स को जगह नहीं देते हैं, तो उसके ऊपर बड़ी अच्छी लाइन है बेटे कि बरसात में हो जाते हैं तालाब कम ज़र्फ, आपे से कभी बाहर समंदर नहीं होता। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, सुराही वो भी सुराही एक कर इंस्पिरेशन होता है उनका, शायद उनका एक तरीका होता है हाउ टू टीच। नहीं बेटे, एक बात ये ऐसा है, मेरा मेरा ये मानना है, मैंने आज तक, मेरे सारे टीचर जानते हैं, मैंने कहीं बहुत पहले पढ़ा था कि एक कामयाब लीडर की एक आदत होनी चाहिए कि एक सीक्रेट वो जो किसी को ना बताए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसका एक कारण है कि जब मैं रात को सोता हूँ ना, तो मैं ये मान के सोता हूँ कि आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। आप समझ लीजिए इस बात। Yeah। जी आप समझ रहे हैं ना बेटे? अगर हम इन इन चीजों में, इन ईगोज में रह जाए ना कि ये सीखेंगे हमसे, कई बार आपको मालूम है कि अगर आप 10th क्लास में जाकर के बच्चों से फरवरी की स्पेलिंग बताओ तो कम से कम 30% बच्चे गलत लिखते हैं। आई एम ओके विद दिस, आई एम ट्रूली आप समझ रहे सेड। हैं? और किसका कसूर है? हम ये बोलते हैं छोटे टीचरों ने नहीं सिखाया, हम क्यों नहीं सिखा सकते? हाँ आप बस। समझ रहे हैं ना? अगर हम इस चीज में, मेरे पास पब्लिशर्स आते हैं, यू वोंट बिलीव, कई पब्लिशर्स को मैंने अपने घर पे खाना तक खिलाया है। राजस्थान से बच्चे चले हैं, कहते हैं कि सर हम पूरा दिन वेट करते रहते हैं, प्रिंसिपल हमें देखते नहीं है। और मेरे पास जितने पब्लिशर आते हैं, आप पता कर लीजिए, मैं 10 से 15 मिनट में उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ।
नहीं सर, मतलब दिस इज वेरी अप्रिशिएबल सर, कमेंडेबल एक्चुअली। आप समझ रहे हैं ना बेटे कि असल में ऐसा था कि इस चीज में हम पड़ जाएं कि ये वक्त से सीखेंगे या इन्हें कोई सिखाएगा, फिर परमात्मा ने हमें क्यों बिठाया वहां पर। मेरी जो अपनी फिलॉसफी है लाइफ की, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे साथ बैठने के बाद, मेरे साथ 10 मिनट बैठने के बाद आदमी 10% इंप्रूव नहीं हुआ तो मेरे जीने पे लानत। Actually, I completely agree, sir. Completely agree. Yes, very, very true. सीमा मैम, आपने हाथ रेज किया था, if you want to say something. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. Yes. Yes, ma'am. This is Seema from the Dashmesh Public School, Faridkot only. I don't have words. It was really speechless session by sir. So we are so proud that we are Dashmeshians, ma'am. And I have a very wonderful experience with sir. I don't know sir is remembered or not. Today I am not able to share that experience with you, but due to that only today also I am sitting in Dashmesh Public School only. So I don't have words for sir kindness. Really hats off to him. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so Thank much, you, Seema ma'am. ma'am. Thank you for sharing that. So Okay. great. It was a wonderful session. Sir, any closing quote or something you want to give? You have already given so much, but it is amazing. And every Sunday we meet around 11 o'clock on the same platform, same pin code and same Zoom link. You're most welcome. And especially for teachers, we are conducting one session on classroom where different kinds, how you can utilize your classroom on the basis of NEP and NCF. On Saturday we are having, and I have already shared the the details over there, and you're most welcome. और स्पेशल दशमेश टीचर्स के लिए तो स्पेशल वो है, तो ये अपूर्व सर आपको बताएंगे. यस सर, नो ओवर टू यू. अगेन मिसेस मोनिका, थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग दिस शो. और फिर यही है, रियल में मुझे नहीं पता है कि आज का ये जो सेशन अचानक बना और इसका क्या कारण था, पर मैं समझता हूँ कि परमात्मा जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उसके मीन्स रीजन रहता है, कोई ना कोई. और मैं समझता हूँ कि जो आज की जो ये महफिल जमी थी हम लोगों की, ये किसी की जिंदगी रोशन करेगी. मुझे याद है मेरे स्पीचेस में देता रहता हूँ, बच्चे सुनते हैं. एक बार एक लड़की थी मेरे पास कोटकपुरा में. शी वाज वंडरफुल ओरेटर, बहुत अच्छी ओरेटर थी और मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी. तो जब फेयरवेल हुआ उनका, जब वो जाने लगी, तो अभी वो जॉब कर रही है, और उसने मुझे गले लगाया जोर से और कहती सर एक प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे. मैंने क्या कहा? कहती कि सर आज से 20-25 साल बाद भी मिस्टर देवगन मुझ में जिंदा रहे. awesome. कहती सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके जो शब्द हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी वे ऑफ, वो मुझे बड़ी हैरानी होती थी. किसी भी मैरिज पार्टी में जाके सबसे पहले पूछती थी, प्रिंसिपल सर आए हैं, उसका नाम सुमेधा शर्मा है, और उसने आकर के जोर से मेरे से गले मिल कि वो प्यार था हमारा. तो कहने का मतलब यही है कि पता नहीं कौन इस समंदर में से कौन सी बूंद ले जाए और किस मछली की उससे प्यास बुझे. मुझे बड़ी हैरानी हुई. मुझे एक बार राजस्थान से एक प्रिंसिपल का फोन आया, मैं अपनी पोइट्री डालता रहता, तो उसने बोला कि क्या मैं आपकी पोइट्री अपनी असेंबली में यूज कर सकता हूँ, ऐसे डाल दीजिए. तो ना जिंदगी बड़ी खूबसूरत है. और फिर यही है कि पता नहीं हमारे कारण किसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है, किसी को रोशनी मिलती है और वो आगे बढ़ता है, कामयाब होता है, और कभी मुड़ के कहता है कि हाँ आपने मेरी जिंदगी में एक बदलाव. जैसे उस बच्ची को मैं आज मैं आज बेटे को रिसीव करने गया था बठिंडा से, तो वहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे. तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो बोलते नीट की तैयारी कर रहे हैं. तो जो इनके टीचर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनको लिंक दिया कि ये लिंक, और लकड़ी देखी वो बेटी बोली कि मैं बोलती कि सर को कहीं देखा हो. It's life. Wow, it is so amazing. Thank you so much. And we keep planning for new sessions. I request everybody to please participate,
very nominal amount we have kept it for the sessions, and I'm 100% sure Dr. B. Singh sir and Dashmesh sir, it's a complete community that we have created. So every week we will be coming with new things so that आपकी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करने का मकसद है हमारा, और वो छोटी छोटी बातें जो आपकी जिंदगी को डिफरेंट लेवल पे ले जाए, यही हमारा मकसद है. So thank you so much for honoring us. Thank you so much for giving that time to us. We are so grateful to you. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.